देखिए स्टार्ट करते हैं आज। तो देखो यहाँ पे आप कल मैंने आप लोगों को बताया था, टोपोलॉजीज बता रहा था मैं आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे टोपोलॉजीज जो कर ली थी वो हम लोगों ने बस टोपोलॉजीज देख ली थी और रिंग टोपोलॉजी देख ली थी हमने। ठीक है, अब बचती है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, मैश टोपोलॉजीज और हाइब्रिड। तो गाइस यहाँ पे देखो, बस टोपोलॉजीज, रिंग टोपोलॉजीज, इट्स कवर्ड. Now we discuss about the star topology, mesh and hybrid topology. So what do we mean by star topologies? Any idea? Do you have your network? When you work in the LAN? Yes, sir. If you work in the LAN, you see a device called hub or switch. Yes, sir. Now, number of switches you can see around that have many wires directly connected to this central point. So this is my central point. This is switch. Switch have many ports. So different wires connecting in this central point. And your device is connected here like this. These are the workstations that are connected on a central point. This central point is called concentrator. This device is called concentrator. What do we mean by concentrator? Concentrator is a centralized device that you have to connect in a central point. All the workstation is connected using this central point. If you want to send the traffic from this device to this device, you have to send the data directly to the concentrator device, and the concentrator device taking decision to sending the packet to this one. Okay. If you want to send the data from this device to this device, this is the source and this is the destination. You want to send the packet from source to destination, you have to send the packet to the device, and device taking decision to sending the data to this device. It is depend on the concentrator device. It's a hub or switch. If you have a switch or hub, the device, some of the device makes a CAM table. Some of the device produce the CAM table, content addresses memory table. And in this table have the two fields. First field denoted the port numbers that you have to connect it, and the second one is the MAC address. MAC address is the physical address of the device that you want to connect. And just like this one, this is a port number 1 and this is a port number 4. You want to send the traffic from the port number 1 to 4. So how it's possible? So you have to send the packet to centralized device, concentrator, and the concentrator broadcasts the packet to all the devices, because in the CAM table is empty. There is no any destination address. Okay, so first time it's broadcast because no one or no MAC address is here. So it's got decision for broadcast. In that broadcast, every devices receive that broadcast, and every devices check the MAC address respect to the packet. So this is the source address and this is the destination address. So in the packet, we have source address and destination address both. So packet goes
to every devices, but there is no matching for the destination address except this one. This device matches the packet and then it's receive the packets and the packet is delivered here. All other device in the network discard the packet. So got my point? Mr. Yogesh? Yes, sir. कुछ समझ आया? हाँ सर. क्या समझ आया? समझाओ जरा. डेस्टिनेशन जो सोर्स डिवाइस जो भी डेटाबेस है ना, मैक टेबल में रीड करता है और जो भी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस रहेगा उसी पे फॉरवर्ड हो जाता है. अगर देखो ये डिवाइस है, अगर यहाँ कोई मैक एड्रेस मिला ही नहीं, उसको डेस्टिनेशन मैक मिला नहीं, तो क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा. सभी डिवाइस देखो क्या है कि अभी ये क्या है, अभी जो ये डिवाइस है ये एम्प्टी है. ठीक है, इसके अंदर कोई भी मैक एड्रेस नहीं है. तो जो फर्स्ट टाइम ये डिवाइस पैकेट सेंड करेगी तो यहाँ पे मैच करेगी मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं. तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगी? ब्रॉडकास्ट कर देगी. अगर वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, जैसे मान के चलते हैं डेस्टिनेशन पोर्ट है 3 और उसका मैक एड्रेस है 111.111.222, तो क्या होगा? ये यहाँ चेक करेगी मैक एड्रेस, चेक किया इसने, मैच हो गया. अब ये देखिए कि कौन से पोर्ट पे जाना है, तो ये डायरेक्ट पोर्ट नंबर 3 पे पैकेट को सेंड कर देगी. गॉट माय पॉइंट? ठीक है. अगर यहाँ मैक एड्रेस मिल गया और उसके रेस्पेक्टिव पोर्ट मिल गया तो उस पे वो फॉरवर्ड कर देगी यूजिंग यूनिकास्ट पैकेट. अदरवाइज ब्रॉडकास्ट होगा, हमेशा ब्रॉडकास्ट होगा एवरी टाइम. गॉट माय पॉइंट? सैम, is there any question? अरे माइक म्यूट है तुम्हारा, माइक म्यूट है, आप बोलो. मैं कह रहा था सर, इसमें जो हर कंप्यूटर की सबकी अलग अलग पोर्ट होगी या एक ही, जैसे कोई पोर्ट है 143, तो वो यहाँ से ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर मेरे को भेजने का, और वहां पर मेरे CDE है, तो सबका जो CDE जो कंप्यूटर है वो सबके अलग अलग पोर्ट है. हाँ, देखो क्या होता है, यहाँ जो डिवाइस है ये किसी न किसी पोर्ट से कनेक्टेड है, तो उस पोर्ट का यहाँ पे क्या है, नंबर लिखा हुआ है. इस पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस है? भाई ये डिवाइस पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट है, तो इसका पोर्ट नंबर 1 है और इसका मैक एड्रेस यहाँ लिखा जाएगा. जब ये डिवाइस पैकेट सेंड करेगी, जब ये सेंड करेगी तो यहाँ रजिस्टर्ड करेगी पहले मैक को. उसके बाद ये डेस्टिनेशन ढूंढेगी. हाँ, पहले रजिस्टर्ड करेगी, उसके बाद डेस्टिनेशन ढूंढेगी. हाँ, बराबर है. ठीक है, समझ गया अभी मैं. समझा मैं. हाँ, तो जो डिवाइस डेटा सेंड करनी चाहती हैं वो यहाँ पे पहले रजिस्टर्ड करेंगी. ठीक है, तो इसका मतलब सर जब भी हम LAN केबल से और फिर भेजेंगी जी, यानी कि जब भी हम 5 कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर कर लेगा सबको. हाँ, ऑटोमेटिक रजिस्टर कर लेगा. हाँ, फिर उसके बाद हम फॉरवर्ड करेंगे तो वो पहले अपनी रजिस्ट्री चेक करेगा, फिर उसके ऊपर पे वो डाल देगा, सेंड करेगा. अगर वो जैसे कि मैंने डाल दिया, अगर यहाँ मैक एड्रेस मिला वो तो ठीक है, नहीं तो ब्रॉडकास्ट कर देगी. ये होता है स्विच के अंदर. ये जो टेक्नोलॉजी मैंने बताई, दिस इज स्विचिंग टेक्नोलॉजी, स्विच के अंदर होती है. और ये स्टार है, देखो स्टार में क्या हो रहा है ना, ये सेंट्रल पॉइंट पे ही सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है. ये देखो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है सारे. अच्छा, ओके, समझ. ये स्टार की शेप बन गई, स्टार की शेप बन गई. बराबर. ओके, समझ आया ना बात? स्टार के बाद हमारे पास आता है मैश जो होता है, मैश में क्या होता है, देखो मैश में कई सारी डिवाइस है मेरे पास. देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिवाइस है मेरे पास. अब इसमें क्या होता है, मैश में every device is connected to each device. Every device is connected to each device. और देखो यहाँ से एक कनेक्शन गया, यहाँ पे, यहाँ से कनेक्शन यहाँ गया, एक कनेक्शन यहाँ गया, एक कनेक्शन यहाँ गया और एक कनेक्शन यहाँ गया. ठीक है, अब देखो, अब दूसरे डिवाइस को उठा लेते हैं. अब इससे कनेक्शन बनाएंगे. देखो एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया,
और एक यहाँ गया। ठीक है, अब यहाँ से उठाएंगे, एक कनेक्शन यहाँ गया, एक कनेक्शन यहाँ गया, एक कनेक्शन यहाँ गया। ठीक है ना, देख रहे हो ना, सारी डिवाइसेस किसी न किसी कनेक्शन से कनेक्टेड है। अब देखो ये इससे ये जुड़ेगा, इससे ये जुड़ेगा, देख रहे हो। अब इससे तो बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड जुड़ेगा। है। हाँ, ये पूरा देखो सारी डिवाइसेस एक दूसरे से किसी न किसी फॉर्म में कनेक्टेड है। बात समझ आ रही है। यहाँ से ऐसे भी जाएगा, देखो कनेक्शन। ठीक है, बात समझ रहे हो, मतलब किसी न किसी वे में उसे कनेक्ट होना ही है। दिस कॉल्ड द मैश, इसे कहते हैं मैश। ये मैश दो तरीके का होता है, एक होता है फुल मैश और एक होता है पार्शियल मैश। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है ये स्विचिंग में होती है। यहाँ पे देखो हम क्या है, एक स्विच यहाँ लगा रहे, 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 हर जगह क्या कर रहे हैं, एक एक स्विच लगा रहे हैं और इनको आपस में जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, एक से ज्यादा वायर कनेक्टेड हो रहे हैं। तो देखो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है यहाँ पे। तो अगर ये लिंक डाउन होता है तो मेरा दूसरा रास्ता कौन सा होगा बताओ। मैं ऐसे करके पहुंच जाऊंगा ना। अगर ये भी टूट गया तो मैं कैसे जाऊंगा, ऐसे करके चला जाऊंगा। ये भी टूट गया तो मैं ऐसे करके ऐसे चले जाऊंगा। देख रहे हो ना, एक से ज्यादा रास्ते हैं। तो इसको कहते हैं रिडंडेंट लिंक। क्या कहते हैं इसको, रिडंडेंट लिंक। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग। तो देखो ये होती है हमारी मैश। सॉरी, ये जो डिवाइसेस कनेक्टेड है सर, ये स्विचेस है या ये सब स्विचेस है, ये सब स्विचेस कनेक्टेड है। ये ओके। राउटर भी हो सकते हैं, स्विचेस भी हो सकते हैं। इस तरह की जो टोपोलॉजी बनती है राउटर स्विचेस को यूज करके बनती है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक सिस्टम में मैं 5-10 लैन कार्ड लगा के और वायर ले जाता रहूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, करने को तो कर सकते हो पर मजा नहीं आएगा आपको, वो एक स्टेबल चीज नहीं है। ओके, गॉट माय पॉइंट। बराबर है, ये तो समझ में आ गया सर। यस, दिस इज द मैश टोपोलॉजी। अगर हाफ कनेक्टेड है दैट इज द पार्शियल, एंड इफ यू फुली कनेक्टेड दैट इज द फुल मैश। दोनों में डिफरेंस पता लग गया। फुल मैश में फुली कनेक्टेड होगा। नहीं सर, थोड़ा एक बार और बताना, फुल और पार्शियल में। फुल में सारे लिंक कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, पार्शियल में एक दो लिंक छूट जाएंगे। पार्शियल में ऐसा होगा, देखो पार्शियल में मतलब एक दो लिंक क्या होंगे आपके, छूट जाएंगे। ठीक है, एक डिवाइस यहाँ पे तो ये ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है। बाकी डिवाइसेस जो है कनेक्टेड नहीं है, तो ये पार्शियल हो गया। क्योंकि एक लिंक अभी ऐसे भी बनेगा, एक लिंक ऐसे जाएगा, तो ये पूरा नहीं है, ये पार्शियल हो गया। ठीक है ना, तो पार्शियल और फुल मैश ये दो तरह की होती है। ओके, गॉट माय पॉइंट, समझ गया सर। नाउ गोइंग टू द हाइब्रिड। अब बात करेंगे हाइब्रिड। क्या पूछ रहे हो, रिडंडेंट लिंक क्या है सर? ये रिडंडेंट मतलब एक से ज्यादा लिंक। एक से ज्यादा, जैसे एक स्विच ये है और एक स्विच ये है, हम दोनों स्विच को कैसे कनेक्ट करेंगे, एक वायर से कनेक्ट करेंगे। लेकिन हमने एक से ज्यादा वायर से अगर कनेक्ट किया तो दैट इज द रिडंडेंट लिंक। ये सब रिडंडेंट हो गए, एक से ज्यादा लिंक हो गए। ये इसलिए होता है कि अगर एक कट गया तो दूसरे से, और दूसरा कट गया तो तीसरे से जाएंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द रिडंडेंट। गॉट माय पॉइंट, बराबर है सर। अब हम बात करेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्लेवर, दो फ्लेवर का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड होता है। जैसे मैंने कहा कि चॉकलेट और वैनिला दो फ्लेवर है मेरे पास, और दोनों आइसक्रीम के फ्लेवर मैंने आपस में क्या कर दिए, मिला दिए। तो क्या बन गया, बोलो, चॉकलेट वनीला बन गया ना, चॉकलेट वनीला बन गया ना। तो दिस इज द हाइब्रिड, हाइब्रिड हो गया, मतलब दो चीज का मिक्सचर हो गया। समझ रहे हो। अगर मैंने कहा कि ऑरेंज जूस है मेरे पास और ऑरेंज जूस में आप पाइनएप्पल जूस मिला दो तो क्या होगा, बोलो।
या मैंने कहा ऑरेंज कि का एप्पल। हमारे पास जो है अनार का जूस है और अनार में आप संतरे का जूस मिला दो, बताओ क्या होगा? टेस्ट चेंज हो जाएगा ना, टेस्ट हो जाएगा ना बराबर है चेंज। सर। दिस इज द न्यू फ्लेवर, बराबर। ये नया फ्लेवर बन गया। सो दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड। ठीक है ना? Yes, एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, घोड़ा और गधा। घोड़ा देखा है? ऐसा काम जो घोड़े से नहीं ले सकते, ऐसा काम जो गधे से नहीं ले सकते, बताओ। अब दोनों काम हमें चाहिए, घोड़े का भी चाहिए और गधे का भी चाहिए, बताओ क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे, बोलो। तो दोनों को रख लेंगे सर, फिर क्या करेंगे? अरे दोनों को नहीं रखेंगे और भैया, तीसरी पैदावार पैदा करेंगे ना, नहीं समझे तुम? अच्छा। खच्चर बनाएंगे। खच्चर देखा? खच्चर, खच्चर हाँ देखा? बराबर है, सही है। वो खच्चर क्या करता है, उसे गधे गधे की तरह ढो भी लो और दौड़ा भी लो, दोनों काम हो जाएंगे। समझ रहे हो? उसके ऊपर बैठ भी जाओ, ठीक है, और उसे दौड़ा भी लो और वजन भी ढो लो, ठीक है, तो दोनों काम कर देगा वो। हरफन मौला चीज है, ठीक है ना? जो काम ये दोनों नहीं कर सकते, वो काम करता है ये। तो दिस इज द हाइब्रिड, हाँ दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड। ऐसा काम जो हम लेना चाहते हैं, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी के साथ, दैट इज द हाइब्रिड। अब देखो, बस टोपोलॉजी और स्टार दोनों को मिला दो, बोलो क्या बन गई? बस और स्टार दोनों को मिला दो। ये देखो तुम्हारी स्टार और बस को कैसे मिलाओगे, देखो, ये होगी बस, बस टोपोलॉजी। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्विच लगा दूंगा, देख रहे हो? अरे कैसी ट्यूनिंग आ रही है? पुलिस का सायरन है क्या? हाँ सर, वो बाहर है, वो नई अच्छा, एम्बुलेंस है सर। अच्छा एम्बुलेंस है, वही मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ देख रहे हो, स्टार है और ये बस है, तो दिस इज कॉल्ड ट्री, इसे ट्री बोलेंगे। ट्री टोपोलॉजी, ट्री पैड की तरह दिख रहा है ना ये, तो ये ट्री, ट्री इज अ हाइब्रिड, दिस इज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी। इट्स अ मेकिंग ऑफ बस एंड स्टार, दोनों को मिला के बनी है, ठीक है। और एग्जांपल देखो, ये आपकी है रिंग, रिंग से मैंने उठाई, बस में डाल दी, ठीक है, ये देखो। और यहां मैंने क्या किया, ये देखो स्टार लगा दी। ये रिंग होगी और ये हो गई बीच वाली बस और ये हो गई आपकी स्टार। तो दोनों की, तीनों के कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? रिंग प्लस बस प्लस स्टार, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड, इसे हाइब्रिड बोलेंगे। ओके, डू गेटिंग माय पॉइंट? yes sir। समझ आ गया? मोर देन कितना, कितने भी ये कर सकते हैं ना सर, कितने भी हाँ, दो तीन, कितने भी टोपोलॉजी कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इसमें। भी लगाओ यार, हाइब्रिड बनाने से Yes, मतलब है, हाइब्रिड का जमाना है आजकल। हम्म, ठीक है ना? सही तुम्हें है एक सर, सही टेक्नोलॉजी है, आती है सही। तो कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें मल्टीपल टेक्नोलॉजी आती है तो तुम्हें पूछेगा, तुम हाइब्रिड बन जाओ, yes, ठीक है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं तुम्हें यहाँ पे। हाइब्रिड yes, बनोगे sir, तो काम के रहोगे, हाइब्रिड नहीं बनोगे तो बेकार, ठीक है। ये सारी yes, चीजें आनी चाहिए तुम्हें, हाइब्रिड नहीं yes, बनोगे sir, तो बेकार है। बेकार। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पे। तो ये तो थी हमारी टोपोलॉजीज, अब हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, इसका मैसेज आया, मॉर्निंग में ज्वाइन करेगा ये। अविनाश आया नहीं आज। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम अब देखते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। देखो यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करेंगे तो देखो हमारे कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनआईसी कार्ड, रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, ठीक है। एनआईसी कार्ड हो गया, रिपीटर हो गया, हब, ब्रिज, स्विच, मॉडेम, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, और क्या कहते हैं फायरवॉल, ठीक है। इन सब की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे इनके बारे में, ठीक है। डू यू नो अबाउट दीज डिवाइसेस? हैव एनी आइडिया अबाउट दीज डिवाइसेस? यस सर। सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो वही है। एनआईसी कार्ड के बारे में आप लोग जानते हो? यस सर, दैट इज लैन कार्ड। लैन कार्ड है ना सर ये तो। अच्छा, और इसके बारे में कुछ जानते हो लैन कार्ड के बारे में? लैन ये तो पता है सिर्फ लैन कार्ड है, लेकिन लैन कार्ड करता क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय लैन कार्ड? व्हाट डू यू मीन बाय एनआईसी कार्ड? why it's are using, why we are सर using? वो नेटवर्क को नेट उसमें 7 केबल होती है ना, जो केबल के अंदर 7 पोर्ट 7 चीजें होती है, तो उसको कनेक्ट करके मतलब कि नेटवर्क को कंबाइन करने के लिए करते हैं सर। रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ज्वाइन करते हैं इसको। सिर्फ यही पता बाकी होगा। डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर सर। डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, सही कह रहा है ये सैम? हाँ वो भी कह कर रहा है, सकते हैं बिल्कुल सही सर। कह रहा है। हाँ वो अगर पीछे सीपीयू में दोनों के केबल लगा दें और उसका मतलब कि शेयरिंग ऑन करके वो ट्रांसफर कर सकते हैं सर। सो बस एनआईसी कार्ड का यही काम है। बाकी सर प्रिंटर भी यूज करते हैं सर, जैसे प्रिंटर हो गया तो वहां पर भी उसका नेटवर्क कार्ड होता है वहां पर, जो जैसे प्रिंटर के पीछे होता है ना, प्रिंटर के पोर्ट अंदर होती भी है। होता है नेटवर्क कार्ड, गुड। हाँ और बताओ। नेटवर्क कार्ड वहां पर भी होता है। तो अभी मैंने सिस्टम से उसको लगाया स्विच से, तो स्विच हम्म, टू उस डिवाइस से मैं कनेक्ट कर दूंगा और अपने कंप्यूटर से मैं प्रिंट कमांड दूंगा तो वहां से वो निकल जाएगा प्रिंटर में। तो उस प्रिंटर के पीछे भी नेटवर्क कार्ड होता है। सही है, और ठीक है। बाकी डीपली तो बाकी तो कितना ही मालूम है सर। और योगेश बताओ। बोलो, रोशनी डालो इसके बारे में। आज देखना चाहता हूँ कितनी नॉलेज है। सारी निकाल दो यहाँ पे, सारी उगल दो, जितनी अभी तक पड़ी है सारी यहाँ उगल दो। आज जो कुछ भी मन में है ना, सारा मन हल्का कर लो। आज आज तुम्हें मौका दिया है, बहुत दिनों में आज अच्छा। पकड़ में आए हो। आज तुम्हें बहुत दिनों में मौका दे रहे हैं यहाँ पे हल्का होने के लिए, ठीक है ना? तो अपनी जो भी भड़ास निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। एनआईसी कार्ड के बारे में बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई नहीं, खुल गए यार, कोई दिक्कत नहीं। बोलो।
सुनने के लिए बैठा हूँ भाई। आई एम लिसनिंग टू यू। आईटी में ग्रो सर करना इतना है, ही। आईटी में ग्रो करना है। ग्रो कैसे हाँ करोगे सर ग्रो आईटी में? तो कैसे ग्रो करोगे? ऐसे वही सर, शर्माते अभी रहोगे तो तो सर ग्रो कर देखो मेरे जाओगे? को। हाँ देखो, आईटी में अगर आना है, रहना है, बी सेम प्रूफ। पहला बता रहा हूँ, पहला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना? बी सेम प्रूफ। शर्मलेस बन जाओ, आईटी में हो, इसलिए बता रहा हूँ। बेशर्म बनो। आईटी इंडस्ट्री इज सेमलेस इंडस्ट्री। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी तुम्हें मेरी नहीं, वो तो बातें बात तो है अभी तुम्हें मेरी बातें बड़ी अजीब सी लग रही होंगी, यार ये क्या बोल रहे हैं, है ना? सब। पर जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर, मेरे को तो बिल्कुल, एक्सपीरियंस है सर, मेरे बिल्कुल को ट्रुथ बहुत तगड़ा बोल रहा हूँ। एक्सपीरियंस है इसमें। ठीक है ना? तो चुप मत बैठो, मुझे चुप चुप बैठने वाले अच्छे नहीं लगते। कुछ बोलो। स्टक कैसे हो गई तुम्हारी स्क्रीन? एक ही जगह बैठ गए क्या? सो गए क्या? आई एम लिसनिंग टू यू। एक जगह बैठ गए तुम तो यार। तुम तो कोई रेस्पॉन्स, हाँ, सिर भी नहीं हिला रहे हो। हम्म। हद हो गई यार। मतलब मैंने ऐसा क्या कह दिया यार? हैं? बताओ, ऐसा क्या कह दिया? बताओ। हद हो गई। बोलो भाई, मैंने कुछ ऐसा थोड़ी कह दिया है जिससे ही शर्म आ रही है नहीं नहीं, तुम्हें? कुछ नहीं सर। हेलो। हैं? हेलो। हाँ मैं थोड़ा सा ऑनलाइन पे हूँ, मैं मेरे को थोड़ा सा, एनआईसी मेरे को कार्ड टाइम एक पे, मैं हार्डवेयर डिवाइस निकलता हूँ है। है ना। हाँ हेलो मैं कॉल करता हूँ, हाँ, मैं वो मैसेज ही कर रहा था आपने, ठीक। ओके। हेलो। वो मैसेज ही कर रहा था मैं आपको, बस मेरे को थोड़ा सा ऑनलाइन पे, मैं थोड़ा सा बैठा हूँ उनके साथ। हाँ नो नेटवर्क प्रॉब्लम। इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका नाम क्या है? एनआईसी कार्ड का नाम क्या है? नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क इट्स इंटरफेस नॉट ए कार्ड। लैन कार्ड। इट्स नॉट ए लैन कार्ड, इट्स नॉट ए टेक्निकल टर्म। अगर आप इसको लैन कार्ड बोलते हो तो बहुत ही शर्म की बात है। समझ रहे हो? सर ये नेटवर्क आपके लिए में सर वो शर्म की बात इंटरनेट है नहीं कि आप होता ना। बोल रहे हो कि दिस इज द लैन कार्ड, ये लैन कार्ड है। इट्स नॉट ए लैन कार्ड, इट्स ए निक कार्ड। अंडरस्टैंड? हाँ सर अब लैन, आगे हाँ से मेरे ध्यान रखना। You have a experienced guy. You have a 10 plus year experience in the IT industry, and you say it's a LAN card. It's not a LAN card. It's a NIC card, Network Interface Card. It's a NIC इसमें card. अब सर आगे से क्या इंटरनेट नहीं बोलोगे? होता। हाँ अब आगे से क्या बोलोगे? NIC कार्ड बोलोगे या LAN कार्ड बोलोगे? बोलो। एनआईसी 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 निक कार्ड निक सर का इट्स वो। ए NIC नेटवर्क कार्ड। इंटरफेस कार्ड। आगे से कभी मत बोलना LAN कार्ड, ठीक है? नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? आज तुम्हें पहला कॉन्सेप्ट मिला है, ठीक है ना? इट्स नॉट ए LAN कार्ड, इट्स ए NIC कार्ड, ठीक है? हाँ पहली बराबर सर, चीज वो ध्यान रखना, मिस्टेक हो गया। मेरी हाँ जो बातों को ठीक ध्यान है। रखोगे ना, मैंने कभी तुम्हारे मुंह से अगर सुन लिया लैन कार्ड तो उसी समय क्लास से बाहर। हाँ ध्यान सर वो रखना। गलत है सर, वो मेरे को ध्यान चाहे आया आप अभी। एल वो चाहे लैन सैम कार्ड तुम का हो या कोई LAN और होता भी है। बंदा हो, जो भी क्लास के अंदर बाकी बैच में किसी भी बंदे से मेरे मुंह से अगर सुन लेता हूं मैं कि लैन कार्ड बोल रहा है तो बाहर निकाल देता हूँ। समझ रहे हो? ठीक है ना? क्या बोलोगे आगे से? बोलो बोलो। निक कार्ड, निक हाँ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हाँ, तुम बोलो। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड निक कार्ड। और निक कार्ड, ठीक है? समझ जाओ। कुछ चीजें ऐसी पता लगेंगी तुम्हें जो होश खड़े कर देंगे तुम्हारे। अब हम बात करेंगे निक कार्ड। निक कार्ड की बात करेंगे, ठीक है? तो देखो, निक कार्ड जो है ये बेसिकली किसके लिए होता है? यूज टू कनेक्ट टू द नेटवर्क, नेटवर्क को जोड़ने के लिए होता है, ठीक है? यूज टू कनेक्ट टू द हम्म। नेटवर्क, नेटवर्क को जोड़ने के लिए होता है। पहली चीज बता रहा हूँ, ठीक है? दूसरी चीज, एनआईसी कार्ड जो है, इसके अंदर हमारे पास एक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस। इसके अंदर क्या होता है? मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस इसकी चिप के अंदर होता है। इसमें एक चिप लगी होती है। इसमें क्या लगी होती है? एक चिप। चिप तो जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। इस चिप के अंदर इसका जो मैक एड्रेस है ये क्या होता है? फीड होता है, बर्न होता है, ठीक है ना? ये चिप के अंदर क्या होता है? इसका मैक एड्रेस क्या होता है? बर्न होता है।
मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। मैक एड्रेस को क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं सर। सुना है? हाँ सर सुना है सर। सर वो डिवाइस के पीछे लिखा हुआ आता है सर वो। फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, और बताओ, इसके कई सारे नाम हैं, एक नाम और बताओ। चलो मान लेते हैं। नहीं सर ये तो इतना तो चेले बनने लायक हो तो एक नाम और बताओ। अगर चेले बनना चाहते हो पक्का चेला बनना चाहते हो तो एक नाम और बताओ लैन कार्ड का। ठीक है ना? लैन कार्ड तो नाम तुम रट ही ले आया तुमने। ठीक है, लैन कार्ड बोलोगे, निक कार्ड बोलोगे, एक नाम तो बोलना ही पड़ेगा तुम्हें। लैन कार्ड मत बोलना, ध्यान रख के। इसका एक और नाम बताओ। मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, और बताओ, सोचो। हार्डवेयर एड्रेस। क्या? हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस। गुड 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 गुड। तुम यार पक्के चले बन जाओगे यार, तुम्हें क्वालिटी है, ग्रैब करने की है तुम्हारे पास क्वालिटी इसका। सर हाँ सर है सर। चेला बनने की है तुम में क्षमता, बन सकते हो। ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस, और बताओ, और बताओ। सैम, तुम भी चेले बनना चाहते हो तो बताओ, और बताओ। सर इतना तो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने भी अरे मैक भैया, एड्रेस या बर्न इन एड्रेस। बर्न इन एड्रेस। हाँ ठीक है, फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, बर्न इन एड्रेस। कितने नाम हो गए इसके? 4 नाम हो गए। ये चारों नाम रट लो भाई। ठीक है, कभी भी पूछूंगा, ध्यान रखना, कभी भी पूछ सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, निक कार्ड के बारे में और जानते हैं। देखो, निक कार्ड कई तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं चलो बताओ, बोलो। अलग अलग टाइप के कार्ड देखे हैं तुमने? कल तो दिखा ही रहा था यार मैं तुम्हें निक कार्ड है, और आज तुम बोल रहे हो कि नहीं देखे यार। बताओ, अच्छी बात है कोई? ये आरजे टाइप के होते हैं सर। RJ 45 के टाइप। RJ 45 तो होता ही है इसमें। गुड, और बताओ। सर और ये सर BNC वाले, ये भी देखे होंगे। कोई बीएनसी। और बताओ, एक होते हैं USB वाले, देखे? यूएसबी। हाँ सर, यस सर। और बताओ। बोलो जल्दी। अब तुम बोलोगे वाईफाई वाले, चलो भैया मान लेते हैं, वायरलेस वाले। मान लिया, चलो। और बताओ, और बताओ। ECMCIA कार्ड कितनी कैटेगरी है? RJ45 जैक वाली, BNC जैक वाली, USB वाली, वाईफाई वाली, ECMCIA कार्ड वाली। अब तुम RJ45, BNC, USB, वाईफाई सब जानते हो, ECMCIA जानते हो क्या होता है? हार्डवेयर वाले भाई बताओ जल्दी। कल हार्डवेयर पढ़ाया था, आज भी दोबारा पढ़ाना पड़ जाएगा मुझे, देखो ध्यान रखो। आज मत पढ़वाना हार्डवेयर, वहीं मदरबोर्ड खोल के वहीं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। हाँ जल्दी बताओ, PCMCIA क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। RJ45 पता है, BNC पता है, USB पता है, वाईफाई पता है, वाईफाई वाले कार्ड, वायरलेस कार्ड ये भी पता है। ये कौन से वाले हैं भैया? ये किस खेत की मूली है, ये बताओ, ये क्या है? बोलो। अब बोलोगे नहीं तो नेट पे ले जाना पड़ेगा मुझे, है नेट पे ले जाना पड़ेगा। बताओ, ECMCIA कार्ड, ये दो भैया लैपटॉप में लगते हैं, ये इस तरह का कार्ड होता है। ये देखो, देख रहे हो? कुछ देख रहे हो यहाँ पे? ये देख रहे हो? PCMCIA एडेप्टर कार्ड है, ये लैपटॉप में लगता है। लैपटॉप के साइड में एक बड़ा सा स्लॉट होता है ना खाली सा, उसमें घुस जाता है ये कार्ड।
देखा है कभी? नहीं देखा तो अब देख लो, ये मतलब देखो। वो वायरलेस कनेक्टिविटी, ये मतलब हाँ, वो वायरलेस के लिए होता है ये भी। हाँ हाँ जी। अब मतलब राज जस्ट लाइक खुल रहे हैं, वायरलेस धीरे कार्ड ही है धीरे सर। धीरे राज खुल रहे हैं, धीरे धीरे नहीं पर्दा मतलब उठ वो रहा है आपका। अब देखो पीसीएम सीआईए कार्ड किस किस के लिए यूज होते हैं, देखो एक तो वायरलेस के लिए, दूसरा अब ये देख रहे हो ये क्या है, कनेक्टर है सर, कौन सा तो एक पोर्ट देख रहे हो? पोर्ट है सर वो। इस पोर्ट में क्या क्या चीजें हैं, ये साउंड ब्लास्टर कार्ड है, यहाँ देखो लिखा है साउंड ब्लास्टर। इससे आप साउंड कार्ड, अगर आपका साउंड कार्ड खराब हो गया है तो इसके थ्रू आप साउंड कार्ड भी लगा सकते हो, ये साउंड कार्ड फॉर्म में आता है। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर, मतलब बात समझ आई? कॉम्बिनेशन ऑफ निक कार्ड एंड साउंड दूसरा, कार्ड है सर। ये देखो, ये मेमोरी अडेप्टर कार्ड की तरह भी यूज हो सकता है पीसीएमसीआई कार्ड। अगर आपके सिस्टम में, लैपटॉप में पीसीएमसीआई कार्ड है तो आप मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो उसमें, पर उसके लिए आपको मेमोरी कार्ड वाला पीसीएमसीआई लेना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आई? एक ये चीज यूज कर सकते हो आप। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो, ये देखो, ये डायरेक्ट एटीए कार्ड लगा सकते हो आप, एटीए पीसीएमसीआई। ये में एक तरह का मेमोरी कार्ड होता है, जैसे 16 GB 20 GB, इस तरह से आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा, आप यूएसबी भी लगा सकते हो इसके थ्रू, और फायर वायर लगा सकते हो। फायर वायर पोर्ट है, कैमरे में यूज होता है ये पोर्ट, यूएसबी पोर्ट प्लस फायर वायर, ये इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो ये बड़े काम की चीज है, बात समझ आई? ये फायर वायर पोर्ट भी एडवांस टेक्नोलॉजी कनेक्ट सर, कर ये है, ये एडवांस ये टेक्नोलॉजी पूरा है नया लेकिन बहुत एडवांस पहले से टेक्नोलॉजी चलती आ रही है, ये तुम्हारे लिए अब एडवांस हो चुकी है, समझ रहे हो? क्योंकि है। तुम्हें ज्ञान ही नहीं है इस चीज का, ये सही है। आज आज थोड़ी इजाद हुई है ये टेक्नोलॉजी, Yes, sir, ये yes, बाबा आदम के जमाने से चली आ रही है, जब से लैपटॉप बन रहे हैं। ठीक है ना, जब से लैपटॉप बने हैं तब से चल रही है ये, बाबा आदम आदम के जमाने से। ठीक है, जब पहला लैपटॉप बना था उसी समय जो है ना, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये बोल दिया था भैया यहाँ पीसीएम सीआई कार्ड लगेगा, समझ रहे हो? yes, ये sir. तब से चली आ रही है टेक्नोलॉजी, ये आज की नहीं है। अब तुम कहोगे ये नया इजाद है, ठीक है, तो समझ जाओ, ठीक है ना? अच्छा, अब हम तुम्हें और भी दिखाते हैं, देखो यूएसबी, यूएसबी निक कार्ड। यूएसबी निक कार्ड इस तरह का होता है, देखो कल हमने वायरलेस टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की थी Yes, sir. या ना? Yes, किए थे सर। की थी। 802.11 क्या होता है, अब बताओ वो IEEE स्टैंडर्ड, क्या होता है? IEEE स्टैंडर्ड, देखो स्टैंडर्ड है सर वो। जूली आप आ चुकी हो, वायरलेस यू हैव मिस सम टेक्नोलॉजी ऑफ के द लिए। पॉइंट्स इन द क्लास। ये देखो, इसका कनेक्शन ही इंटरनेट चल नहीं रहा है सही से, तो समझ में क्या आएगा बताओ? ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, बताओ। ये देखो, इस तरह का आपका कार्ड होता है, दिस इज द यूएसबी एनआईसी कार्ड। अभी आ रही है इमेज, लोड हो रही है, दिस इज। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 802.11n। तो ये एन Yes, sir. स्टैंडर्ड कौन सा स्टैंडर्ड होता है मुझे बताओ? शाबाश, कल मैंने पढ़ाया था आपको वायरलेस स्टैंडर्ड्स, तो आज मैं आपका टेस्ट लेता हूं और पूछता हूं कि ये क्या है, बोलो बोलो। सैम, कल क्लास में थे? क्लास में नहीं 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 थे सर, तुम? मैं कल नहीं था। कल नहीं थे क्लास में जब वायरलेस समझा रहा था? यार क्या बात कर रहे हो यार, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, तुम थे यार। परसों शायद, परसों ना शायद। परसों नहीं, कल ही की तो परसों नहीं, बात कल है कल यार, सर, कल तो क्लास चली है यार। कल सर। ये देखो सामने सामने झूठ बोल रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, ध्यान रखना। हाँ, अरे तो दिमाग से निकल, पता नहीं। यही तो बात है। हाँ भाई योगेश जी बताओ, जूली जी बताओ, वायरलेस स्टैंडर्ड कल समझाए थे, व्हाट डू यू मीन बाय 802.11? एन स्टैंडर्ड कौन सा होता है बताओ?
सर ऐसे तो मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरे को ये मालूम है कि हाँ ये चीजें मतलब कि जैसे कीबोर्ड में भी आती है ना सर, ये भी कीबोर्ड में भी यूज करते हैं और वायरलेस में भी आता है, जैसे वाईफाई के लिए ये तो एक डोंगल हाँ आता है इस वाईफाई टाइप के का, लिए मैं बता रहा हूँ। टीपी लिंक में। ये जो एन स्टैंडर्ड है ये किस लिए यूज होता है, मैंने कल बताया था आपको किस लिए यूज होता है एन स्टैंडर्ड। जूली बताओ, सर इसका फ्रीक्वेंसी मोर जल्दी देन बताओ 2.5 रहता है सर ये। क्या रहता है 2.5 गीगाहर्ट्ज का 2.5 के मोर देन 2.5 रहता है 2.5 2.5। अरे यार सर, 2.5 क्या बात। ये देखो यार, पढ़ाई नहीं करते हो, घर जाके नहीं पढ़ते हो। हाँ जूली बताओ। सर इसका स्पीड हाई होता है सर, 5 गीगाहर्ट्ज का स्पीड होता है और ये मोस्टली यूज होते हैं। गुड, हाई हाई स्पीड तो होता है। देखो देखो क्या है कि जो हमारा एन स्टैंडर्ड है वो हाइब्रिड है, मैंने कल बताया था, इट्स ए ये हाइब्रिड स्टैंडर्ड। पावरफुल भी होते हैं। हाँ इसका पावरफुल होता ये है, मोस्ट पावरफुल भी होता है। हाइब्रिड स्टैंडर्ड होता है और ये तीनों स्टैंडर्ड का मैच करता है, ए बी जी एन, ये सारे स्टैंडर्ड का कॉम्बिनेशन है ए बी जी। तो आप यहाँ देखो नीचे देख सकते हो, इट्स ए कॉमन स्टैंडर्ड फॉर बी जी एन, ये देखो लिखा हुआ है। ये रिसीवर देखो वाईफाई रिसीवर है ये, इसकी स्पीड है 300 Mbps, यूएसबी एनआईसी कार्ड है और ये तीनों स्टैंडर्ड पे काम करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज। बात समझ आई? चलो आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली चीज आपको दिखाते हैं। नहीं सर, आपने तो एन को बोला। सॉरी, हमारा इंटरनेट स्टेबल नहीं है। ये देखो एक और डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो यूएसबी एनआईसी विद एंटेना। कभी कभी क्या होता है, यूएसबी एनआईसी जो होते हैं उनमें सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं एंटीना लगा देते हैं। ये देखो इसमें सिस्टम में लगाएंगे और एंटीना ऐसे लगा देंगे, ठीक है, तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये स्पीड जो है इसकी अप टू 600 Mbps तक जाएगी। वो 300 Mbps का था, ये 600 Mbps का। इसमें भी देखो तीनों स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं, बी जी और एन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। ये तीनों स्टैंडर्ड क्या हो रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं। तो समझ में आ गया। देखो एनआईसी कार्ड कितने टाइप के हैं, RJ45, BNC, USB, वाईफाई, PCMCI। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैं एक चीज और आपको बता रहा हूँ कि हर पीसी का अपना क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो मैक एड्रेस जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक एड्रेस जो होता है वो डुप्लीकेट नहीं होता, इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर जो मैक एड्रेस है, एक मशीन का जो एड्रेस है वो दूसरी मशीन का हो ही नहीं सकता, मैच नहीं करेगा कभी भी एक दूसरे से। तो दैट इज द यूनिक एड्रेस। यूनिक एड्रेस होता है और ये होता है हमारा 48 बिट्स का। कितने बिट का होता है ये? 48 बिट्स का। और ये एक हेक्साडेसिमल एड्रेस है। ये कैसा एड्रेस है? हेक्साडेसिमल एड्रेस है। बात समझ आई? इट्स ए 48 बिट्स हेक्साडेसिमल एड्रेस।
और ये दिखता कैसा है, इसको देखने के लिए देखो कंप्यूटर में कमांड चलानी पड़ती है। पहले आपको जाना पड़ेगा CMD में, और CMD में जाने के बाद आपको चलाना पड़ेगा ipconfig/all कमांड, और एक दूसरी कमांड है वो भी आप चला सकते हो, get mac कमांड। ये दोनों कमांडों से आप फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने सिस्टम पे ले चलता हूं और वहां पे आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलते हैं। दिखाई दे रहे हैं मेरी स्क्रीन? यस सर, कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है मेरा? यस सर, Yes, इस कमांड प्रॉम्प्ट पे एक कमांड चलाऊंगा get mac। get mac कमांड से जितने भी मेरे पास लैन कार्ड हैं उनके मैक एड्रेस दिख जाएंगे। तो आप ये देख रहे हो फिजिकल एड्रेस, ये सब हमारे क्या है, मैक एड्रेस है। ये सारे क्या है, हमारे मैक एड्रेस है। हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस है, तो जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके ये मैक एड्रेस दिखाई देने हैं। ये सब क्या है, मैक एड्रेस है। ये सारे क्या है, मैक एड्रेस है। ये सब मैक एड्रेस है। ठीक है, अब ये जो मैक एड्रेस होते हैं पता कैसे चलेगा ये किस वेंडर का है, किस वेंडर ने इसको डिजाइन किया है? तो देखो जो मैक एड्रेस होता है उसके देखो दो पार्ट होते हैं, 1 2 3। यहाँ पे देखो लाइन डाल दो, आप लाइन खींच दो। इसमें जो पहले की जो ये 3 पार्ट है, ठीक है, ये आपके 24 बिट है। ये आपके क्या है, 24 बिट है। और ये वाले भी आपके क्या है, 24 बिट है। तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 24 बिट और 24 बिट में। पहले की जो 24 बिट है ये बताते हैं वेंडर को कि किसने इसको बनाया है। दिस इज कॉल्ड द वेंडर। वेंडर आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं या मैन्युफैक्चरर को बताते हैं। और 24 बिट्स बाद वाले जो होते हैं ये बताते हैं सीक्वेंस को, सीक्वेंस नंबर या रैंडम नंबर को बताते हैं। ये क्या कैसे जनरेट होते हैं, वाया रैंडम नंबर जनरेट होते हैं। तो पहले के जो 24 बिट्स हैं वो वेंडर को बता रहे हैं, और बाद के जो 24 बिट्स हैं वो रैंडम सीक्वेंस नंबर को बता रहे हैं। बात समझ आई, क्लियर हो गया? मैक एड्रेस के 2 पार्ट हो गए, पहला पार्ट 24 बिट और दूसरा पार्ट भी 24 बिट। क्लियर, गॉट माय पॉइंट? पहले के 24 बिट वेंडर आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं और बाद वाले 24 बिट रैंडम सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब देखो, अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसका वेंडर आईडी क्या है? तो ये वेंडर आईडी पहले के तीन करेक्टर से पता लग जाएगा। मतलब ये जो पहले के जो 3 ये आ रहे हैं ना, 02004C, इनसे पता लग जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगा, एक वेबसाइट के थ्रू इनको चेक करूंगा। देखो तो इसके लिए चलता हूं मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसके एक वेबसाइट है मैक वेंडर्स वेबसाइट, उस पर मैं चलता हूं। macvendors.com, macvendors.com में जाता हूं और यहाँ पे देखो मेरे पास है, देखो 005056 00। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 00 क्या था, 005056। तो जैसे ही मैं डाल रहा हूं तो ये बता रहा है ये एडेप्टर VMware इनकॉर्पोरेशन ने डिजाइन किया। इसका वेंडर कौन है, VMware INC। समझ में आया? अब हम दूसरे का चेक करते हैं। यहाँ पे हम वेंडर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, कि किस वेंडर ने डिजाइन किया है। हमारे सिस्टम में लैन कार्ड लगा है तो किसका लगा है? देखो ये लिखा हुआ है मीडिया डिस्कनेक्टेड, ये वाला हम यहाँ पे सर्च करेंगे। देखो ठीक है, तो ये वाला मैक एड्रेस यहाँ डाल देंगे। ये देखो डाल दिया मैंने मैक एड्रेस, एंटर प्रेस करेंगे तो देखो क्या लिखा रहा है, कॉम्पल इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये ठीक है, कंपनी लिमिटेड। तो इसने ये मैन्युफैक्चरर किया है कार्ड।
तो दुनिया में जितने भी कार्ड बनते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, उनको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। ये मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए एक वेबसाइट है macvendors.com के नाम से। यहाँ पे आप जितने भी लैंड कार्ड है उनको टेस्ट करके चेक कर सकते हो कि कोई फर्जी तो नहीं है, कोई फर्जी कार्ड तो नहीं है आपके सिस्टम में लगा हुआ, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस काम को फर्जी भी कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, चोरी के लैपटॉप ले आते हैं और उसमें क्या करते हैं, मैक एड्रेस वाली जो चिप होती है उसे चेंज करके कुछ उसके अंदर गलत डाल देते हैं, तो उसमें वेंडर को नहीं दिखाता है वो कि किस वेंडर का है, तो वो फर्जी है, वो लैपटॉप भी फर्जी है और आदमी भी फर्जी है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब ये चेक कर लो कि तुम तो फर्जी नहीं हो, अपने अपने लैंड कार्ड को टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये मोबाइल के अंदर भी जो मैक एड्रेस है उसको भी यहाँ डाल हाँ, के चेक उसमें कर भी लीजिए, भैया फर्जी तो नहीं हो तुम भी, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साथ कोई स्कैम हो गया है, ठीक है ना। तुम्हारे साथ जब स्कैम हो जाएगा फिर मेरे से मत बोलना, इसलिए यहाँ टेस्ट कर लेना भाई, पहले बता रहा हूँ, फर्जी काम बहुत चल रहा है आजकल, ठीक है, बढ़ावा मत देना कुछ भी हो रहा फर्जी है काम सर। को, हाँ सचेत रहो, मोदी जी कहते हैं, ठीक है। ये देखो, अब मैं आपको फर्जी भी दिखाना चाहता हूँ, कॉपी करेंगे, बोलोगे यार सर आप तो फर्जी काम करते हो यार, हैं क्यों। ये देखो, स्मार्टफोन ये है फर्जी, देखो। अब बोलोगे सर आप तो फर्जी काम करते हो, भैया करना पड़ता है, बिकॉज आई एम एथिकल हैकर, ठीक है। मैं एथिकल हैकर है, एथिकल हैकिंग की क्लासेस भी देता हूँ, फर्जी काम करने का तो बनता है बिल्कुल, ठीक है ना। जब फर्जी काम नहीं करेंगे तो कैसे पकड़ेंगे फर्जी आदमी को, बताओ, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर बराबर है। चोर को पकड़ना है तो सोचना कैसे पड़ेगा, चोर की तरह सोचना पड़ेगा ना, उससे 2 चोर कदम की तरह सोचना सोचना पड़ेगा ना। पड़ता अगर भैया है। कोई फर्जी घोटाला पकड़ना है तो आदमी को भी क्या बनना पड़ेगा, समझ रहे हो, फर्जी बनना पड़ेगा। पहले घोटाला फर्जी नहीं बनना पड़ेगा, पहले सोच घोटाला करना पड़ेगा। सोच को बदलना पड़ेगा अपनी, आपको दूसरे की सोच से आगे निकलना पड़ेगा, तभी तो जीतोगे, नहीं तो कैसे जीतोगे। अब ये थोड़ी कि आपके साथ फ्रॉड हो गया जी, हाथ हाथ बांध के जी बैठ गए, मेरे साथ हो गया फ्रॉड, मेरे अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो गया जी, बैठ गया जी हाथ ऐसे बांध के, ठीक है, कि कल को तुम्हारे अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन हो जाए, ठीक है, और तुम ऐसे बैठ जाओगे जी, तो चलेगा काम, नहीं चलेगा ना। तो भैया यहाँ पे ये कार्ड हमने टेस्ट किया और हमें मिला क्या, फर्जी। तो इसलिए खबरदार रहो, सावधान रहो, चेक कर लेना अपने अपने लैंड कार्ड, ठीक है। कभी कोई फर्जी तो नहीं है तुम्हारे में, ठीक है ना, क्योंकि फर्जी लगा के भेज देते हैं, ठीक है। ये मैक एड्रेस एक्चुअली मैंने जनरेट किया हुआ है खुद से, इसलिए यहाँ पे ये दिखाएगा नहीं आपको कि ये क्या है, ठीक है ना। और आई एम यूजिंग दिस वन फॉर एथिकल हैकिंग पर्पज, ठीक है। एथिकल हैकिंग पर्पज के लिए मैं इस लैंड कार्ड को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लैंड कार्ड है, ठीक है। मैं अपने लैंड कार्ड की लिस्ट जरा आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या लैंड कार्ड लिए बैठा हूँ, तो आप देख सकते हो। अभी तो मेरे इस वाले लैपटॉप पे ज्यादा नहीं है, मेरे दूसरे वाले लैपटॉप मॉर्निंग में आओगे ना मेरे साथ, ठीक है। हाँ उसमें तो है आप सर, मैंने देखा है। उसमें आप देख मैंने रहे हो देखा है सर, बहुत 20 सारे हैं उसमें। 20 लैंड कार्ड उसमें लगा के रखे मैंने, ठीक है, ठीक है। ये मत सोचना फर्जी आदमी, ध्यान रखना, काम सारे करेंगे, बताएंगे आपको फर्जीवाड़ा कैसे होता है, सर सारे फिजिकल है, वो लेकिन वर्चुअल है तरीके सर से, वो। ठीक है ना। एथिकल हैकिंग सर कराएंगे जब, तुम्हें बताएंगे कैसे फर्जीवाड़ा किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी नहीं, अभी उस लायक बन जाओ पहले कि फर्जीवाड़ा कर सको, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क कैसे होगा वो आपको बताएंगे आगे, आगे जाके बताएंगे स्मार्ट वर्क कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये सारे मेरे नेटवर्क एडिप्टर हैं यहाँ पे काम कर रहे थे, बोलिए कुछ पूछ रहे थे। ये दो दो दिए कर रहे हैं ना सर, ये वाईफाई और ये मतलब ये दोनों हम्म कनेक्टेड है, ये दूसरे सर ये डिस्कनेक्टेड तो है ठीक है, कनेक्टेड है। कि क्या है तो वो एक्चुअल में देखो, ये मेरा जो वाईफाई है ना, ये पता कैसे चल रहा है, पहले तो वाईफाई से चल रहा है, वाईफाई का मैंने हॉटस्पॉट बना यस के सर। उसके बाद कनेक्ट किया हुआ है, कि डायरेक्ट कोई मुझे हाँ क्या ना सर, कर सके, रेमडी ट्रेस ना मोबाइल कर से। सके, ट्रेस नहीं कर सकता कोई मुझे, समझ रहे हो। ये तीसरे लेवल की सिक्योरिटी लगा रखी है, उसके बाद ये कनेक्टेड है,
ठीक है, अगर तुम आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो कर नहीं सकते किसी भी तरीके से, ठीक है ना, बात समझ आई, ये चीज है। देख रहे हो यहाँ पे एड्रेस क्या चल रहा है एक्चुअल वाईफाई एड्रेस कुछ और है, यहाँ कुछ और चल रहा है, ठीक है ना, एक्चुअल में कुछ और है, तो ये सब सिखाएंगे आपको कैसे होता है, ठीक है। ये देखो, ये ब्लूटूथ है, ये अभी चल नहीं रहा है, ये एक नेटवर्क अडेप्टर है, ये लोकल एरिया कनेक्शन, देखो यहाँ पे भी देखो वाईफाई चल रहा है, और ये वाईफाई कैसा है, वर्चुअल बना रखा है, देखो वर्चुअल वाईफाई, ठीक है ना, ये बराबर बना रखा है, देखो। तो इस तरह से समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ क्या चल रहा है, अभी तुम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि मेरे सिस्टम पे क्या चल रहा है, ठीक है ना, अभी उस लेवल का तुम सीखोगे पहले तब। ये समझ आ गया ना मैक एड्रेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्लियर हो गया? हाँ सर, समझ में आ गया, क्लियर 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 हो गया ना। मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए गेट मैक कमांड है, उससे यहाँ पे मैक एड्रेस को उठा के चेक कर सकते हो फर्जी है कि नहीं, ठीक है। आईपी कॉन्फिग में एक ही दिखाता है ना सर? आईपी कॉन्फिग भैया चला के दिखा रहा हूँ, एक ही उसमें सभी नहीं, एक ये देखो दिखाता है ना, एक ब्लूटूथ वाले का है, अलग है, ठीक है, इसका अलग है, ये देखो ये वायरलेस वाले का अलग है, ये देखो इसका अलग है, ये देखो सबके अलग अलग दिखा रहा है, सारे दिखा रहा है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो कमांड, ठीक है। ये देखो हाइब्रिड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो फिर से वापस चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो मैंने देखो यहाँ पे आपको बता रहा था कि मैक एड्रेस जो होता है वो यूनिक एड्रेस होता है, पूरे वर्ल्ड में ये यूनिक होता है, और इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। 48 बिट का ये हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, 24 बिट मैन्युफैक्चरर और 24 बिट रैंडम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले के 24 बिट किसको बताते हैं, वेंडर को बताते हैं कि किसने इस लैन कोड को बनाया है, और बाद के 24 बिट बताते हैं रैंडम सीक्वेंस नंबर को, रैंडम नंबर को, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो ये मैक एड्रेस के बारे में नॉलेज थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट क्लियर हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। देखो एनआईसी कार्ड एक्चुअल में काम कैसे करता है, देखो एक कंप्यूटर यहाँ लगा हुआ है और एक कंप्यूटर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें भी निक कार्ड लगा हुआ है और इसमें भी निक कार्ड लगा हुआ है, दोनों में निक कार्ड लगा हुआ है, अंडरस्टैंड। अब यहां से मैंने क्या किया है, इन दोनों को जोड़ दिया, ओके। अब क्या होगा, देखो यहां से जो निक कार्ड है ये डेटा सेंड करेगा, डेटा हमारा किस फॉर्म में जा रहा है, डिजिटल डेटा 1010 की फॉर्म में, और ये भी रिसीव कैसे करेगा, 1010 की फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, इस डेटा को कन्वर्ट करेगा, वायर के थ्रू भेजेगा, तो कैसे कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करेगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, data is converted into electrical signal and then transmitted, यहां से ट्रांसमिट हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, and at the receiving end another NIC card converted this electrical signal to data again। ऐसे हमारा लैन कार्ड वर्क करता है। लैन कार्ड क्या करता है, डेटा को, इस डेटा को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर ट्रांसमिट कर देता है ओवर द वायर, क्योंकि वायर से करंट ही पास होता है, जैसे हम जानते हैं, वही वायर से क्या जाएगा, करंट ही तो पास होगा, ठीक है। तो डेटा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, करंट फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, और रिसीविंग एंड पे वापस से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस से डेटा फॉर्म में कन्वर्ट करके रिसीव कर रहा है। इस तरीके से ये काम करता है, बात समझ आई। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम ये करता है फ्लो कंट्रोल का, दूसरा काम क्या है, ये फ्लो कंट्रोल करता है, यानी कि ये क्या करता है, उतने ही पैकेट भेजता है जितना कि ये रिसीव कर पाए, तो दैट इज कॉल्ड द फ्लो कंट्रोल, ठीक है, इसे कहते हैं फ्लो कंट्रोल। अभी आगे ओएसआई मॉडल में आपको बताऊंगा कि फ्लो कंट्रोल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूं आपको,
कि तीसरी चीज होती है हमारे पास, जो ये क्या करता है, मल्टीप्लेक्सिंग करता है। डेटा की क्या करता है, मल्टीप्लेक्सिंग करता है। ठीक है, यानी कि जो डेटा होता है ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। देखो डेटा हमारा अलग है, वॉइस अलग है, ठीक है, डेटा है, वॉइस है और टेक्स्ट है, तीन चीजें है ना। इन तीनों चीजों को क्या करता है, कंबाइन करके ट्रांसमिट करता है। तो इसका काम मल्टीप्लेक्सिंग करना भी है, डेटा को कंबाइन करके इस सिंगल वायर से ट्रांसमिट कर देता है। रिसीविंग एंड पे वापस से ये क्या है, डीमल्टीप्लेक्स करके रिसीव कर लेता है। तो ये काम है लैन कार्ड या एनआईसी कार्ड का। ठीक है, दिस इज द एनआईसी कार्ड वर्क। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई प्रॉब्लम है समझ गया सर। पूछिए। Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया? समझ आ आगे गया। बढ़े, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि हमारे पास लैन कार्ड तो समझ में आ गया आपको, एनआईसी कार्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास डिवाइस है दैट इज द रिपीटर। रिपीटर इज अ डिवाइस दैट रीजनरेट द वीक सिग्नल। देखो हमारे पास जो सिग्नल होता है ये आफ्टर 100 मीटर वीक हो जाता है। इफ वी हैव ए वायर ऑफ 100 मीटर इट बिकम्स वीक आफ्टर 100 मीटर। देखो नॉर्मली जो यूटीपी केबल है या जितने भी तरह की केबल है उसमें नॉर्मली जो केबल की सेगमेंट लेंथ होती है वो 100 मीटर होती है। आफ्टर 100 मीटर द सिग्नल बिकम्स वीक एंड signal is dropping after some time. If you want to receive that signal you need a repeater. आफ्टर 100 मीटर अगर आप सिग्नल को रिसीव करना चाहते हो तो वीक सिग्नल है। तो वीक सिग्नल क्या है, आगे जाके कैरी नहीं होगा, डेटा जो है आपका पहुंच नहीं पाएगा। तो दैट इज वी कैन यूज ए रिपीटर डिवाइस। उसके लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी, रिपीटर डिवाइस। रिपीटर्स डिवाइस बूस्टिंग द सिग्नल, इट इज बूस्टिंग द सिग्नल। ये किस काम आ रहा है, सिग्नल को बूस्ट करने के काम आ रहा है। इट इज बूस्टिंग योर वीक सिग्नल। ओके, सो इट्स रीजनरेट द वीक सिग्नल, इट्स रीजनरेट द वीक सिग्नल। ये वीक सिग्नल को क्या करता है, फिर से रीजनरेट कर देता है, जिससे कि आप फिर से नेक्स्ट 100 मीटर डेटा को सेंड कर सकें। गॉट माय पॉइंट? क्लियर? Yes, sir. Okay, now going to the next device. इसके बाद हम बात करेंगे हब की। हब is a multi-port repeater. It is a multi-port repeater device. It's also a repeater but have the multiple ports. देखो रिपीटर जो होता है उसमें दो ही पोर्ट होते हैं, ये दो पोर्ट होते हैं। रिपीटर में एक पोर्ट से इन होता है और एक से आउट हो जाता है। एक केवल यहाँ इन जाएगी और यहाँ से आउट आएगी, ये रिपीटर का काम है। तो आपने देखा भी होगा जगह जगह रिपीटर लगे होते हैं लाइंस में। जैसे आपने ब्रॉडबैंड की लाइन देखी होगी या आपने जो इसकी फाइबर की लाइन देखी होगी, उसमें बीच बीच में इस तरह के ब्लैक बॉक्स लगाए जाते हैं सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए। ठीक है ना, तो ये इस तरह की जो डिवाइस हैं इनको हम कहते हैं रिपीटर। लेकिन हब जो होता है, हब में मल्टीपल पोर्ट होते हैं, दो से ज्यादा पोर्ट होते हैं, लेकिन काम वही है, काम वही है रिपीटर वाला ही। यानी कि ये सिग्नल को रीजनरेट कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है, और ये मल्टीपल पॉइंट से डिवाइसेस को जोड़ देगा हब। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं हब और रिपीटर दिखते कैसे हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो भाई, इसके लिए आप मेरे ब्लॉग पे जा सकते हो।
ब्लॉक का नाम है। जब यहाँ पे आप जाओगे तो आपको सिर्फ टाइप करना पड़ेगा फ्री CCNP वर्कबुक। क्या टाइप करोगे? फ्री CCNP वर्कबुक। ध्यान रखना, और किसी वेबसाइट पे मत पहुंच जाना, ठीक है? सिर्फ यही टाइप करना है। तो पहले नंबर पे जो रिजल्ट शो होगा वो मेरी वेबसाइट का लिंक है, ठीक है? ये देखो, इस पे आप आ चुके हो। दिस इज माय पर्सनल वेबसाइट, ठीक है? अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये मेरी ही वेबसाइट है, कि मैंने फर्जीवाड़ा तो नहीं किया है? तो आप मेरी यहाँ से प्रोफाइल चेक कर सकते हो फॉलो करके इसको, ठीक है ना? जब आप इसे फॉलो करोगे तो मेरी प्रोफाइल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये देखो, इसे आप फॉलो कर लेना, ठीक है? अच्छा देखो, यहाँ पे जब आप आओगे, ये देखो, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रिपीटर दिखता कैसा है। दिस इज द रिपीटर। ये रिपीटर होता है, देख रहे हो? इसमें दो तो BNC पोर्ट है और दो RJ45 है। ये RJ45 वाला भी आता है और BNC वाला भी आता है। तो ये दोनों काम इसमें आप कर सकते हो रिपीटर के अंदर। एक तरफ से इन दोगे, एक तरफ से आउट, एक तरफ से इन करोगे, एक तरफ से आउट, ठीक है? तो ये आपका होता है रिपीटर। अब हब कैसा दिखाई देता है? ये ऐसा दिखाई देता है। हब में देखो नॉर्मली 4 या 8 पोर्ट होते हैं हब में, इस तरह का दिखाई देता है। और इसमें आप क्या है, RJ45 कनेक्टर की मदद से, ठीक है, हेल्प से आप अपने कंप्यूटर डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? देखो, इस तरह का भी हब आता है। ये देखो, इसे कहते हैं पैसिव हब, इसे कहते हैं पैसिव हब। और ये जो आप देख रहे हो ये एक्टिव हब है। एक्टिव हब और पैसिव हब में यही डिफरेंस होता है कि जो एक्टिव हब होता है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है, और जो पैसिव हब होता है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड नहीं होती है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर? रिपीटर, हब, पैसिव हब, एक्टिव हब, पैसिव हब, क्लियर हो गया? यस सर। सही है सर। ठीक है ना? अब देखो, अब हम बात करेंगे आगे क्या, ब्रिज की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? ब्रिज की बात करेंगे। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे ब्रिज की। ब्रिज देखो, बेसिकली क्या है, जो ब्रिज डिवाइस है इसका काम क्या है? देखो, ब्रिज डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू लैन सेगमेंट्स। ब्रिज क्या करता है? दो लैन सेगमेंट को जोड़ता है। अब जैसे मान के चलते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे दो नेटवर्क बने हुए और दोनों नेटवर्क को आपने हब से कनेक्ट किया हुआ। यू हैव टू नेटवर्क, one network is here and another network is here, and you want to connect both of them. दोनों को आप जोड़ना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? एक वायर से जोड़ दोगे, ऐसे जोड़ दोगे ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बता सकते हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो कुछ प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? बोलो, हैव एनी आइडिया? कुछ आइडिया है? इस अगर हम हब से हब को जोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आएगी प्रॉब्लम? बताइए। कोई आइडिया है? सर ब्रिज Have तो any वही है ना idea? सर, जैसे बाईपास। सर ब्रिज तो वही है ना, जैसे हमने बाईपास बना दी है। अरे बाईपास को छोड़ो। देखो क्या होता है कि हमने यहाँ पे देखो हब कनेक्ट किया है और यहाँ भी हब कनेक्ट किया है और इन दोनों को जोड़ दिया है। तो आप जानते हो कि हब क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है हमेशा। तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है, और ये वाला हब भी ब्रॉडकास्ट करेगा। किया इस दोनों ने ब्रॉडकास्ट। अब जो इन दोनों ने ब्रॉडकास्ट करेगा तो ब्रॉडकास्ट एरिया कितना हो जाएगा? इतना बड़ा ब्रॉडकास्ट एरिया बन जाएगा। कितना बड़ा ब्रॉडकास्ट एरिया बन गया? इतना बड़ा ब्रॉडकास्ट एरिया। तो इससे क्या है? पॉलिसी बैंडविड्थ बढ़ता है वेस्ट होगी। पहली तो चीज है, पहली चीज क्या है, आपकी जो बैंडविड्थ है
वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, Waste. पहली चीज। दूसरी चीज है कि भाई अगर आप इधर किसी भी डिवाइस में देखते हो कि अगर इस नेटवर्क में कहीं कोलिजन होता है, इस नेटवर्क में क्या होता है, अगर कोलिजन होता है तो ये कोलिजन यहां भी आ सकता है, समझ रहे हो। कोलिजन का मतलब है कि दो पैकेट यहाँ पे एक साथ ट्रांसमिट कर दिए मैंने और दोनों क्लैश हो गए आपस में, यानी कि क्या हो गया, कोलिजन हो गया। दोनों डिवाइस ने सेम टाइम में डेटा ट्रांसमिट कर दिया, बिकॉज देयर इज ए हाफ डुप्लेक्स इन्वायरमेंट। यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स इन्वायरमेंट होता है हब के अंदर। अगर कोई दो डिवाइस एक टाइम में सेम टाइम में डेटा को सेंड कर दे तो कोलिजन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों कनेक्शन अनस्टेबल हो जाते हैं और हमारा नेटवर्क डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे कोई कोलिजन हो रहा है तो वो कोलिजन यहाँ भी इफेक्ट करेगा, ये डाउन होगा तो ये भी डाउन हो जाएगा। अपने आप तो डूब ही रहे हो और दूसरे को भी ले डूबो, ये कहानी है यहाँ पे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। आप डूब रहे हो, आपने कहा भैया तू भी आ जा यार मेरे साथ, हाथ पकड़ ले मेरा, ठीक है, दोनों जने एक साथ डूबेंगे। अकेले डूबने में मजा नहीं आ रहा, ठीक है ना। मैं कुएं में कूदता, तू भी कूद जा, आ जा, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है भाई, ये ले डूबा इसे, ये पूरा नेटवर्क क्या हुआ, ये ले डूबा इसे, और साथ में क्या है, ये खुद भी डूब गया, समझ रहे हो। ये कोलिजन यहाँ से यहाँ अटैक करेगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट चल रहा है ना। ये कोलिजन अगर यहाँ होगा, यहाँ डिस्टरबेंस करेगा तो ये यहाँ भी आएगा ना भाई, समझ रहे हो। कोरोना का असर भैया ये चाइना है, समझ रहे हो, और ये दूसरी कोई कंट्री है। तो भैया चाइना वालों ने बनाया यहाँ से, तो ये इफेक्ट यहाँ भी कर रहा है ना, ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना यहाँ से, उड़ के जा रहा है ना। तो वही कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ पे तो कोई फिल्टर नहीं लगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में कोई फिल्टर लगा सकते हो, लगा सकते हो, बोलो। अगर कोरोना बस फैल रहा कोरोना है की तो तरह। कैसे रोकोगे, बोलो, बोलो कैसे रोकोगे। कोई फिल्टर लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे भी नेटवर्क में हम क्या कर रहे हैं, कोई फिल्टर नहीं लगा सकते यहाँ पे। अगर कोलिजन आ रहा है तो आने दो बेटा, ठीक है, आप भी डूबो और मैं भी डूबूंगा, ठीक है, आप भी मरो मैं भी मरूंगा, समझ रहे हो। ये स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। चाइना ने कहा कि मैं डूब रहा हूं, आप भी डूबो, मैंने वायरस बनाया, आप भी लो, ठीक है, बहती गंगा में आप भी धो मैं भी धोता हूँ, आप भी नहाओ मैं भी नहाता हूँ, नहीं ठीक है ना, पानी बह रहा है नहाओ खूब। चाइना वालों ने पूरा बर्बाद कर दिया सब सबको। मैं भी बर्बाद, तुम भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद, ये लो सही। मजे लो, ठीक है। तो मजे आते हैं, दिस इज द टेक्नोलॉजी समझ रहे हो। अब हम बात करेंगे ब्रिज की। ये देखो बहुत बड़ी बात बोल दी ब्रिज ने। देखो अब देखो, अब हम यहाँ पे देखो कोरोना को तो नहीं रोक सकते, लेकिन अब यहाँ पे कोलिजन को जरूर रोकेंगे हम कोरोना को तो नहीं रोक सकते लेकिन कोलिजन को जरूर रोकेंगे समझ रहे सही हो। है सर, सही है। तो उसके लिए हम क्या है, एक डिवाइस लगाएंगे जो हमें प्रोटेक्ट करेगी कोलिजन से, कोरोना से नहीं कर सकती, ठीक है। ये देखो भैया एक नेटवर्क यहाँ है और एक नेटवर्क यहाँ है, यहाँ पे हो रहा है कोलिजन, पूरी तरह से बर्बादी फैल रही है, महामारी फैल रही है, ये यहाँ पे कोलिजन की महामारी ये फैल रही है, देखो ऐसे फैल रही है। अब ये फैलती 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 यहाँ आने की कोशिश कर रही है। तो अब भैया ये है इंडिया, अब इंडिया वाले थोड़े स्मार्ट हैं, तो इंडिया वाले बोलेंगे भैया दूर हट जा, तो हमने लगा रखा है यहाँ पे स्पेशल टेक्नोलॉजी, ब्रिज लगा रखा है यहाँ पे, ये देखो जो भी भेजोगे ना यहाँ फिल्टर हो जाएगा और फिर फिल्टर होके ही अंदर आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, जब भी कोई पैकेट भेज रहा है, ये देखो ये पैकेट भेजे जा रहा है, चाइना वाला यहाँ पे भेजे जा रहा है कोरोना, ये देखो अब यहाँ हमने क्या लगा रखा है, फिल्टर लगा रखा है, ये फिल्टर है, दिस इज द फिल्टर। ये फिल्टर किस चीज का फिल्टर है, ब्रिज का फिल्टर है, ये देखो
ये ब्रिज हमने डिवाइस लगा रखी है भैया फिल्टरिंग के लिए। ब्रिज डिवाइस इज यूज फॉर फिल्टरिंग द डेटा पैकेट्स कमिंग फ्रॉम दिस नेटवर्क। यहां से इनकमिंग पैकेट आ रहे हैं पूरी तरीके से, लगातार आ रहे हैं, फेंक रहे हैं पूरी तरह से जोड़ लगा के। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रिज क्या कर रहा है, एक एक पैकेट को इंस्पेक्ट कर रहा है। एक एक पैकेट को क्या कर रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है। अब इंस्पेक्ट कैसे करेगा, ये क्या करेगा, इसके फर्स्ट 64 बाइट को रीड करेगा। क्या रीड करेगा, इट्स रीडिंग फर्स्ट 64 बाइट ऑफ द फ्रेम। यहां से जो फ्रेम आ रहा है, जो फ्रेम पैकेट आ रहा है, उसके पहले के 64 बिट या 64 बाइट को ये क्या करेगा, चेक करेगा। और इसमें अगर कोई कोलिजन विंडो आइडेंटिफाई होती है, अगर इसमें कोई कोलिजन विंडो आइडेंटिफाई होती है तो उस पैकेट को इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, अगर कोई पैकेट कोलिजन फ्री है या कोलिजन विंडो डिटेक्ट नहीं होती है तो उसे फॉरवर्ड कर देगा आगे। ये काम है ब्रिज का। बात समझ आई? यहां से पूरी तरह से कोरोना के कीटाणु आ रहे हैं, हमें ऐसा फिल्टर लगा दें ब्रिज टाइप का जो क्या करे, इनको फिल्टर करके यहीं मार दे और यहाँ पे सिर्फ वही आए जो फिल्टर हो जाए, जिसमें कुछ नहीं है वो आगे बढ़े। तो इसके लिए क्या कर रखा है, एयरपोर्टों पे वो लगा रखे हैं ना स्कैनर, वो यही काम कर रहे हैं। समझ रहे हो, वो यही काम कर रहे हैं। इंफ्रारेड स्कैनर लगा रखे हैं उन्होंने, हर कंट्री ने, यूएस वालों ने भी, इंडिया ने भी, चाइना वालों ने, जिससे कि अगर कोई कोरोना का मरीज है तो वो दूर से ही आइडेंटिफाई हो जाए और फिल्टर होके ही अंदर आए। वही काम ब्रिज का है, समझ गए? ठीक है ना? अब समझ गए होंगे, कोरोना के चक्कर में सब कुछ समझ में आ रहा है। कोरोना ना होता तो ब्रिज भी समझ में नहीं आता कि क्या काम करता है। समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें सॉल्व कर दी है इसने, कोरोना ने जब से हुआ है। हर तरह का एग्जाम्पल इस पे फिट बैठता है, हर तरह का। हाँ तो मतलब ठीक है ना? 64 बिट रिसीव करता है, ये रिसीव नहीं करता भैया, रीड करेगा। ये पैकेट के पहले के 64 बिट रीड करेगा। अगर इसमें कोलिजन विंडो आइडेंटिफाई होती है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, पैकेट को वहीं पे लॉस कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा इमीडिएटली। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फॉरवर्ड करेगा आगे। ठीक है ना? इंडिया में तभी पहुंचेगा जब यहाँ से फिल्टर होके आएगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। सर वो बीच में सर फायरवॉल भी इसी की तरह काम करती है ना सर? हाँ, फायरवॉल भी इसी तरह के काम करती है, लेकिन आगे बताएंगे फायरवॉल कैसे काम करती है। ठीक है, ओके सर, डन। हाँ जी, ये समझ में आ गया, आगे बढ़े। ये समझ गया सर, हाँ, ब्रिज। ठीक है, अब ये मत बोलना ब्रिज इज डिवाइस दैट फिल्टर द कोरोना वायरस। ठीक है ना? हाँ, ये मत बोल देना। हाँ, कभी एग्जाम में पहुंच गए, वहां पे उसमें पहुंच गए इंटरव्यू में, हाँ जी ब्रिज बताओ क्या होता है ब्रिज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रिज। सर जी वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कोरोना जब अटैक करता है ना तो उसे फिल्टर कर देता है। ठीक है ना? अभी सर वो इजी वे भी है ना, वो इजी वे भी है ना, ये मत बोल देना समझाने के लिए। ये मत बोल देना तुम। ठीक है ना? ये तो तुम्हें समझाने के लिए बोला है मैंने। अभी वहां बोल दो भैया कोरोना से बचने के लिए ब्रिज लगा रखा है। ठीक है ना? थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लेना अपना। ठीक है? हाँ। नहीं तो यहाँ डिवाइस बिकने के लिए रेडी हो जाएगी, यहाँ पे ऑर्डर आ जाएंगे मेरे पास, करोड़ों का ऑर्डर आ जाएंगे, भैया लाओ भाई डिवाइस लाओ भाई, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भैया पहले से बच के रहो। ब्रिज हो गया, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्विच। स्विच आप लोगों ने देखा होगा, स्विच क्या होता है? स्विच को हम बोलते हैं क्या, मल्टी पोर्ट ब्रिज। इट्स कॉल्ड मल्टी पोर्ट ब्रिज। देखो ब्रिज में सिर्फ 2 ही पोर्ट होते हैं, लेकिन स्विच में क्या होते हैं, मल्टीपल पोर्ट होते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है मल्टी पोर्ट ब्रिज। इट्स कॉल्ड द मल्टी पोर्ट ब्रिज। स्विच और ब्रिज दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं,
जो ब्रिज के अंदर टेक्नोलॉजी है वही स्विच के अंदर टेक्नोलॉजी है। ये भी फिल्टरिंग करता है, ये भी फिल्टरिंग करता है, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है ना। दोनों क्या है, भाई भाई हैं। जो इसका काम है यही इसका काम है, जो ब्रिज का काम है वही स्विच का काम है, बस इसमें पोर्ट ज्यादा होता है और इसके 2-4 फंक्शन और ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो भैया, जो स्विच है, ये स्विच क्या करता है, कैम टेबल बनाता है। क्या बनाता है, कैम टेबल या मैक टेबल, या मैक टेबल, दोनों एक ही चीज है। मैक टेबल या कैम टेबल एक ही होती है। ये मैक टेबल या कैम टेबल बनाता है और फिल्टर करता है। तो ये क्या करता है, फर्स्ट टाइम तो करेगा ब्रॉडकास्ट, और उसके नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, ये यूनिकास्ट करेगा। पहले क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा और उसके बाद यूनिकास्ट करेगा। हब क्या करता है, 24 आवर ब्रॉडकास्ट ही करता है, क्योंकि वो कैम टेबल रीड नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी मेमोरी में मैक एड्रेस को रीड करने की पावर नहीं है। लेकिन इसके अंदर पावर है मैक एड्रेस को रीड करने की। यहाँ पे जो फिल्टरिंग लगी है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि भैया ये जो पैकेट जा रहा है कोलिजन पैकेट है या नहीं। अगर ये कोलिजन पैकेट है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और फिल्टर करके ही आगे भेजता है। तो ये काम क्या है, स्विच का है। तो स्विच क्या करता है, फर्स्ट टाइम तो ब्रॉडकास्ट करता है और नेक्स्ट टाइम से फिर यूनिकास्ट करता है, क्योंकि मैक एड्रेस को रीड करके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे डिलीवर कर देता है पैकेट को। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द स्विच। स्विच के अंदर और क्या कैपेबिलिटी होती है, स्विच के अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे कहते हैं माइक्रो सेगमेंटेशन। नाम सुना है, माइक्रो सेगमेंटेशन का नाम सुना है। स्विच हैव ए टेक्नोलॉजी ऑफ माइक्रो सेगमेंटेशन। ये टेक्नोलॉजी ये कहती है कि एक स्विच से हम दूसरा स्विच कनेक्ट कर दें, दूसरे से तीसरा कर दें, तीसरे से चौथा कर दें, चौथे से पांचवा कर दें। ऐसे करके हम कितने भी स्विचेस कनेक्ट कर लें, जो हमारी बैंडविड्थ एक पोर्ट पे आ रही है वही बैंडविड्थ लास्ट वाले पोर्ट पे भी होगी। 100 स्विच कनेक्ट है तो 100वां स्विच जो होगा, 100 वाला स्विच जो होगा, उस पे भी उतनी ही बैंडविड्थ क्या होगी, आएगी, उस पे भी उतनी ही स्पीड आएगी। दिस इज कॉल्ड द माइक्रो सेगमेंटेशन। अगर आप सेगमेंट के भी सेगमेंट बना दो तो भी आपकी बैंडविड्थ प्रिजर्व ही रहेगी। अगर मैंने कहा है कि 100 Mbps की बैंडविड्थ आ रही है, तो चाहे आप स्विच से कितने भी स्विचेस कनेक्ट कर लें, आपकी जो बैंडविड्थ है वो 100 Mbps ही रहेगी, ठीक है ना। उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा, बिकॉज यूजिंग ऑफ द माइक्रो सेगमेंटेशन टेक्नोलॉजी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? ठीक है, तो स्विच इज यूजिंग द माइक्रो सेगमेंटेशन टेक्नोलॉजी। ये फिल्टरिंग भी करते हैं, तो ये मैक फिल्टरिंग भी करता है। L3 स्विचेस जो है, देखो स्विचेस जो होते हैं ये L2 और L3 दो कैटेगरी के होते हैं। L2 का मतलब होता है लेयर 2 स्विच और L3 का मतलब होता है लेयर 3 स्विच। देखो लेयर 2 जो स्विच है ये डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, ठीक है, और जो लेयर 3 स्विच है वो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। ये दोनों में फर्क होता है। लेयर 3 स्विच जो है वो राउटिंग भी कर लेता है, लेयर 2 स्विच राउटिंग नहीं कर सकता, ये सिर्फ स्विचिंग ही करेगा, राउटिंग नहीं करेगा, ठीक है। जो लेयर 3 DLL स्विच का है, मतलब क्या है सर? डेटा लिंक लेयर। ये राउटिंग भी कर सकता है प्लस स्विचिंग भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। और जो लेयर 2 स्विच है ये सिर्फ क्या है, स्विचिंग करेगा, ये राउटिंग नहीं कर सकता, स्विचिंग ही कर पाएगा। और ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है,
और ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ये दोनों में डिफरेंसेस है। ठीक है, बात समझ आ गई? स्विच क्या काम करता है? अगर और ज्यादा डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप CCNA ज्वाइन कर सकते हैं। यू हैव ए चांस टू ज्वाइन CCNA ट्रेनिंग इन डेप्थ। अगर आप चाहते हो कि CCNA ट्रेनिंग आप ज्वाइन करें इन डेप्थ में और सारी डिवाइसेस को पढ़े इन डेप्थ में, मैंने तो वैसे डेप्थ में बता रहा हूँ, लेकिन और ज्यादा डेप्थ अगर आपको चाहिए, पूरी राउटिंग स्विचिंग की पूरी डेप्थ चाहिए, ठीक है, तो आप CCNA ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, नॉमिनल चार्जेस हैं, वो आप DM करके मुझसे पूछ सकते हैं क्या चार्जेस हैं इसके। ठीक है, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं CCNA। बिना CCNA के कोई भी नेटवर्क इंजीनियर नहीं बना आज तक, ये रिकॉर्ड है। ठीक है ना, और बिना सर्टिफिकेशन के हम उसे नेटवर्क इंजीनियर बना चुका है ये भी रिकॉर्ड है। CCNA सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेशन करो ना करो आपको नेटवर्क इंजीनियर बना के छोड़ेंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है ना, यहां से पढ़ा हुआ कोई भी बंदा कभी फेल नहीं होता। ठीक है ना, यहाँ से पढ़ा हुआ बंदा कभी भी कोई फेल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम उसको घोल के पिला देते हैं, समझ रहे हो, पूरा घोल के पिलाते हैं। कहते हैं ना कि भाई घोल के पिलाया, पिलाया क्या? हाँ पिलाया है, घोल के पिलाया है, यहाँ घोल के पिलाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा मोटो ही है घोल के पिलाना। अगर घोल के नहीं पिलाएंगे तो बात नहीं बनती। ठीक है ना, अब चाहे कुछ भी खोलना पड़े हमें, लेकिन कुछ ना कुछ मिला के पिला देते हैं। ठीक है ना, नशा पूरा होता है। ठीक है ना, काम होता है यहाँ पे ठीक है, समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो, CCNA की तो बात अलग है, पहले यहाँ पे MCS से कर लो पहले। ठीक है ना, पहले CCNA पे ध्यान मत दो, पहले अब यहाँ पे वो उस पर ध्यान दे दो। आगे जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है कौन सी डिवाइस आएगी। स्विच हो चुका है। अब हम बात करेंगे किसकी? मॉडेम। किसकी बात करेंगे? मॉडेम की। देखो, मॉडेम एक डिवाइस है जो क्या करती है, दो काम करती है। आपको पहले सिग्नल के बारे में बताते हैं। देखो, एक इस तरह का सिग्नल होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिग्नल है ये, और दूसरा जो सिग्नल होता है वो इस तरह का होता है। दोनों तरह के सिग्नल को जानते हो कि क्या कहते हैं इनको, बता सकते हो? एनालॉग एंड डिजिटल सर। अरे वाह, दिल खुश कर दिया यार ये तो चेला बनने लायक है भाई बंदा, दिल खुश कर दिया इसने। दिस इज कॉल्ड द एनालॉग सिग्नल। अब इसके अंदर जो है ना चीजें अभी बाहर आ रही हैं। ठीक है ना, आ रही हैं बाहर, धीरे धीरे बाहर आएगी इसके। दिस इज सर कॉल्ड क्या द बोलते हैं एनालॉग सर इसको? सिग्नल। एनालॉग सिग्नल एनालॉग कहते हैं इसको। हाँ, ये एनालॉग सिग्नल। और जो नीचे वाला आप देख रहे हो, दिस इज द डिजिटल सिग्नल। इसे कहते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल। अब इसका 10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है ये नहीं बोल रहा है, इसका एक्सपीरियंस बोल रहा है ये। हाँ ये ठीक है तो ना। कौन सा ये रहता है सर? ये सिग्नल्स रहता है हाँ, ऊपर वाला, और ये कौन सा नंबर्स रहता है इसका? ये एनालॉग है, ये डिजिटल है। अच्छा ठीक है भाई, अब लपेटे में लेते हैं तुझे। ठीक है, आ जा अब तू, अब साइड में आ जा पहले। ये देखो साइड में लूंगा अभी तुझे, चिंता ना कर ये देखो, ये जो वेव सिग्नल आप देख रहे हो, ये देखो, ये अपने पीक पे पहुंच गया। इसको क्या कहते हैं? बोलो, तेरी सारी साइंस निकाल दूंगा आज यहाँ पे। हाँ बोलो, इसको क्या कहते हैं? ये पीक पे पहुंच गया, क्या कहते हैं इस चीज को? इतने पार्ट को क्या कहते हैं? ये जो ऊपर देख रहे हो ना, बिग पार्ट, पहाड़, ये पहाड़ को क्या कहते हैं? इस पहाड़ को क्या कहते हैं? बोल भाई, एनालॉग। अब चुप क्यों है? नहीं सर, पता नहीं। निकल गई साइंस पूरी। ये एम्पलीट्यूड है,
ये क्या है? एम्पलीट्यूड। ये पीक है, ये वेव्स अपने पीक पे पहुंच चुकी है, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ठीक है ना? अब जब ये सिग्नल अपने पीक पे पहुंचेगा तो नीचे भी उतरेगा भैया। देखो दुनिया में क्या होता है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो नीचे भी गिरते हैं, समझ रहे हो? और अगर कोई बंदा नीचे गिर रहा है, नीचे गिरा हुआ है, तो वो ऊपर भी बढ़ता है, समझ रहे हो? अभी आपके पास चांस है कि आप इस पॉइंट पे हो और अब क्या है, ऊपर जा सकते हो। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप और नीचे नहीं गिर सकते। गिरा हुआ आदमी और कितना गिरेगा यार, है ना? कहते हैं ना, यार तू तो बहुत गिरा हुआ है। अरे यार, अब वो गिरा हुआ है तो यार और कितना गिरेगा? नहीं गिर सकता ना। अब तो उठ ही सकता है वो, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो उठे। ठीक है, ये तो गया भाई, उठ गया है तो। ये तो निकल लिया यहाँ से। बुरा लग गया इसको। अब देखो ये उठेगा, उठेगा जब तो गिरेगा, फिर उठेगा फिर गिरेगा। इस तरह का जो करंट हो, इसका इस तरह का जो सिग्नल है आपका, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी करंट। ये इस तरह का एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी करंट में ऐसे देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी करंट टेस्ट किया है किसी ने? स्वाद चखा है इलेक्ट्रिसिटी का? टेस्ट किया है? अरे बोलो, अरे करंट खाया कभी? मारता है सर ये। हाँ, बहुत बार खाया है। मैंने तो खाया है सर। खाया है? अरे वाह, तो कितना बहुत बार कैसे लगता है? मीठा मीठा लगता है? टेस्ट कैसा है? नहीं खट्टा नहीं मीठा नहीं कैसा? नहीं नहीं, वो तो बहुत खतरनाक होता है। बढ़िया लगता है ना? यार मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार। मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। वाह, कितना मजा आता है। बस कुछ नहीं करो, बस दो तारों को आपस में पकड़ लो स्विच में लगा के, बस बहुत मजा। अरे भाई, बहुत मस्ती चढ़ती है। इससे अच्छा नशा नहीं है कोई। आपको नशा करना है ना, सबसे अच्छा नशा है इलेक्ट्रिसिटी का नशा। हल्का सा बिल्कुल मजा आ जाएगा 10 सेकंड। 10 सेकंड में बिल्कुल बेहतरीन, जैसे कहते हैं ना, बेहतरीन मजा आ गया, वाह मस्त बिल्कुल। तो वो चीज होती है यहाँ पे। ठीक है, तो भैया देखो ये जो सिग्नल है, ये एक बार इसकी फेज अप हो रही है, देखो एक बार अप हो रही है और एक बार क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो देखो एक बार ये जा रहा है प्लस में और एक बार जा रहा है माइनस में। तो एनालॉग सिग्नल की फेजेस हमेशा क्या होती है, कभी प्लस होती है कभी माइनस, फिर प्लस में जाएगा फिर माइनस में आएगा, फिर प्लस में जा रहा है फिर माइनस में आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये फेजेस लेता है। इलेक्ट्रिसिटी 1 सेकंड में मालूम है कितने फेज लेती है? मालूम है? इलेक्ट्रिसिटी बताओ, बोलो, तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो। 1000 साइकिल होती है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 1000 बार ऊपर नीचे हो जाएगा। तभी तो आपका झटका लगता है ना, गड़ 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 गड़, ऐसे लगता है झटका। कैसे लगता है? कैसे लगता है झटका? लगता है ना बिजली का झटका। तो ये जो फेजेज है, प्लस माइनस होता है। कुछ नहीं हो रहा, जैसे आप करंट को पकड़ोगे तो ऐसा हो रहा है ना, तो दैट इज द प्लस माइनस, और कुछ नहीं। साइंस की टर्म में इसे कहते हैं प्लस माइनस। एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार। तो बिजली का झटका जो होता है वो छोड़ देता है आदमी को, क्योंकि उसकी फेजेस होती है प्लस माइनस होता है। लेकिन अगर मैंने कहा है कि अगर बिजली की फेज ऐसे, बिजली की बिल्कुल सीधी सीधी आ जाए करंट, तो मालूम है क्या है? इस करंट को कहते हैं डीसी करंट। डीसी करंट, डीसी करंट जो होता है बैटरी का करंट होता है। एक बार, सिर्फ एक बार आप इसे पकड़ लो भाई, कसम से कह रहा, बहुत मस्त, बहुत मस्त है। छूटेगा नहीं जब तक, जब तक पूरे शरीर का ब्लड चूस ना ले, छोड़ेगा नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि इसमें फेजेस नहीं है, इसमें कोई प्लस माइनस अच्छा। नहीं है। समझ रहे हो? एक बार पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं जब तक पूरा बॉडी खत्म नहीं हो जाता। समझ रहे हो? तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी करंट। डीसी करंट इज ए हाई पावर वोल्टेज। सबसे अच्छी चीज है, बहुत मस्त चीज है। ठीक है, अब ये डीसी करंट ही हमारा यहाँ पे नेटवर्क में काम आता है, ध्यान रखना। बहुत खतरनाक है, लेकिन प्लस ये क्या है कि इतना नहीं है कि आपको ये खत्म कर दे। ये सिर्फ आपका जो होता है +5 और -5 होता है। कितना है?
+5 -5 वोल्ट, बहुत छोटा छोटा सा, चीटी सी काटेगी बिल्कुल, ठीक है ना। आप बैटरी जो होती है ना, उसको कैसे चेक करते हो? जीप पे लगा के चेक करते हो ना, जीप पे लगा के चेक करते हो ना बैटरी को कि ये चल रही कि नहीं। छोटी सी जो बैटरी होती है, सेल सा होता है ना, हाँ उसको सर, जवान चेक पे किया, हाँ बराबर। जवान पे रख के चेक करते हो ना, हल्की सी चीटी सी काटती है। तो वो क्या है, बहुत कम है। वो क्या है आपकी 1.5 वोल्ट है, बहुत ही कम है। इससे थोड़ा ज्यादा करंट होता है, +5। टेस्ट करना है इसको भी, बहुत मतलब हल्की चीटी काटेगी, ज्यादा नहीं। मतलब मैंने किया हुआ है टेस्ट, तुम लोग टेस्ट करोगे? करवाएं इस दिन, आए करवाएं टेस्ट। ज्यादा नहीं है, ठीक है, हल्का स्वाद है इसका, मीठा मीठा सा, हल्का सा बाइट काटेगा बस, और कुछ नहीं हल्का सा काटा, छोड़ दिया, जैसे कुत्ता काटता है ना, ऐसे ऐसे काटेगा, थोड़ा झकोरेगा, झिंझोड़ेगा, छोड़ देगा फिर, ठीक है, टेंशन नहीं लेने की। तो अब यहाँ पे देखो, ये एनालॉग है, अब एनालॉग नीचे है डिजिटल। तो हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करे और डिजिटल से एनालॉग में करे। तो वो डिवाइस है मॉडेम। वो डिवाइस कौन सी है? मॉडेम। मॉडेम। ये आपकी टेलीफोन लाइंस आई, ये आपका पीसी है, ठीक है, इसमें लगा है मॉडेम। आपने मॉडेम को एक वायर यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये दूसरा पीसी है, यहाँ भी ये लगा है क्या, टेलीफोन। टेलीफोन से मॉडेम कनेक्टेड है, यहाँ से हम सिग्नल भेज रहे हैं। ये देखो, ये जो लाइन है बीच में, ये एनालॉग लाइन है, और हमारा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल रिसीव करता है 1010। ये देखो, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जब सिग्नल जाएगा तो टेलीफोन लाइंस के थ्रू जाएगा, तो मॉडेम क्या करेगा, इसे एनालॉग में कन्वर्ट करेगा पहले। ये देखो किया, और जब यहाँ पे दूसरा मॉडेम इसने देखा तो दूसरा मॉडेम इसे वापस से डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। पहली टेक्निक को कहते हैं मॉड्यूलेशन करना, और दूसरी टेक्निक को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एंड डीमॉड्यूलेशन इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। गॉट माय पॉइंट? समझ आ गया? ठीक है, योगेश जी समझ आ गया? हाँ सर, सैम समझ आ यस गया? सर। हाँ तो समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइस पर, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करेंगे, ठीक है। करंट वर्ंट खा लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो मॉडेम। अब अगली बची है डिवाइस, कौन सी? मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को MUX भी कहते हैं, मग्स। अब देखो, मल्टीप्लेक्सर डिवाइस जो होती है, ये क्या करती है, बहुत सारे सिग्नल्स को, ये देखो, कंबाइन करके सिंगल सर्किट में आगे भेज देती है। यही काम है एंड इसका मल्टीप्लेक्सर का। मल्टीप्लेक्सर कंबाइन द डिफरेंट सिग्नल इनटू सिग्नल सर्किट, सिंगल सर्किट। मल्टीपल सिग्नल आए और एक ही सिग्नल में इसको आगे भेज दिया इसने, ठीक है। दूसरे एंड पे वापस से डीमल्टीप्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप टीवी देखते हो ना, तो टीवी में बहुत सारे चैनल आते हैं, देखते हो ना। जो चैनल होते हैं आपके, वो एक ही वायर के थ्रू आ रहे हैं आपके घर पे, समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो मल्टीप्लेक्स होके आते हैं, और आप क्या करते हो, बटन दबा के बहुत सारे चैनल, अलग अलग चैनल एक ही वायर के थ्रू देख लेते हैं। तो दिस इज द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी। या फिर जैसे आप ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काम कर रहे हो, इसमें आपके देखो वॉइस भी जा रही है, साथ में डेटा भी चल रहा है, और साथ में वीडियो भी चल रहा है। तो ऑडियो वीडियो प्लस डेटा इज मल्टीप्लेक्स्ड थ्रू द मक्स डिवाइस, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लेक्सर का एग्जाम्पल है। नेटवर्क में जगह जगह मल्टीप्लेक्सर यूज करने पड़ते हैं, डेटा को कंबाइन करने के लिए और फिर वापस डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो मक्स डिवाइस या MUX। मक्स डिवाइस दिखता कैसे है? देखा है किसी ने मक्स डिवाइस? देखा है मक्स? देखा है? नहीं सर।
या अब नहीं देखा तो कब देखोगे? देख लो, ये लो, जल्दी देखो, ये है मक्स, ठीक है ना। ये मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर है, दोनों चीजें होती हैं इसके अंदर। नेटवर्क में बहुत ज्यादा काम आता है ये देखो, ये डिवाइस है, देख रहे हो, सारे इसमें फाइबर पोर्ट लगे हुए हैं। तो हाई स्पीड नेटवर्क जहां से आपको ट्रांसमिट कराना होता है, तो मल्टीप्लेक्सर में डाल के आप निकाल देते हो उसे। ये देखो, ये होता है। बात समझ आई? ठीक है ना। यहां से आप क्या करोगे, मल्टीपल चैनल्स एंटर करोगे और यहां से एक वायर निकाल दोगे। बात समझ आई? वो वायर होगा, वो सिंगल होगा, यहां से जो भी डिवाइस है सारे सिग्नल कंबाइन होके यहां से आप निकाल दोगे आउटपुट में, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्स कर दोगे, फिर से मल्टीप्लेक्स करना, कंबाइन करना, डीमल्टीप्लेक्स करना, अलग अलग करना, तो दोनों चीज इसके अंदर यूज होती है, ठीक है। बात समझ आ गई? दिस इज द मक्स डिवाइस यूज इन द नेटवर्किंग, ठीक है। तो अब बच गई हमारी लास्ट डिवाइस बच गई, दैट इज द फायरवॉल। अब बच गई हमारी फायरवॉल। देखो, फायरवॉल जो होती है ये पैकेट फिल्टरिंग का काम करती है। ये लेयर 3 डिवाइस है, पैकेट फिल्टरिंग का काम करती है, ठीक है। तो इसे कभी कभी लेयर 3 लेयर 4 डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लेयर 3 और लेयर 4 दोनों को ये क्या करती है, फिल्टर करती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो ये फायरवॉल लगी है नेटवर्क में, और ये देखो आपका ये वैन कनेक्शन है, दिस इज योर वैन कनेक्शन। ये देखो यहां से इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। इंटरनेट इज इनसिक्योर, तो यहां से क्या इनकमिंग पैकेट आएंगे। अब ये फायरवॉल में जैसे ही एंटर करेंगे, फायरवॉल में क्या होते हैं, कुछ पोर्ट्स होते हैं हमारे पास। बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट बंद होते हैं, लेकिन हम जिन पोर्ट को खोलना चाहें वो खोल सकते हो। पोर्ट क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं, कुछ लॉजिकल पोर्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये जो पोर्ट्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे डिसाइड होते हैं पोर्ट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर पे देखो हमारे पास टीसीपी और यूडीपी काम करते हैं, प्रोटोकॉल दो। तो जो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं या तो टीसीपी बेस्ड होंगे या यूडीपी बेस्ड होंगे। तो जो एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने कहा कि टेलनेट है, तो टेलनेट क्या है, एक रिमोट एप्लीकेशन है, ठीक है, रिमोट लेने के लिए यूज होती है। अब टेलनेट जो होता है इसका पोर्ट नंबर होता है 23 तो अब क्या होगा, जो ट्रैफिक है, अगर ये पोर्ट 23 खुला हुआ है तो इस पोर्ट से आ जाएगा। अगर ये पोर्ट खुला है तो कोई भी टेलनेट कर सकता है आपके नेटवर्क में आके, यहाँ पे कोई डिवाइस लगी है उसको यहाँ से कोई बंदा बैठ के टेलनेट कर सकता है, क्योंकि ये फायरवॉल से फिल्टर होके जा रहा है। फायरवॉल में पोर्ट नंबर 23 खुला हुआ है और इस पोर्ट से ये अंदर घुस जा रहा है। तो इस तरह से मल्टीपल पोर्ट होते हैं हमारे पास। जैसे कि एक होता है वेब ट्रैफिक, एचटीटीपी, जो भी इंटरनेट चलता है वेब ट्रैफिक या एचटीटीपी के थ्रू चलता है, इसका पोर्ट नंबर होता है 80। तो जो भी वेब ट्रैफिक आएगा वो पोर्ट 80 के थ्रू आएगा और 80 के थ्रू अंदर घुस जाएगा। तो फायरवॉल क्या कर रही है, यहाँ पे पैकेट को फिल्टर कर रही है और चेक कर रही है कि इसका सोर्स पोर्ट क्या है और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है और उसे कहाँ जाना है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे हम आईपी फिल्टरिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने कहा कि भाई कोई आईपी एड्रेस है जो 1.1.1.1 है, वो हमारे नेटवर्क में एंटर ना हो, तो हम फायरवॉल पे क्या कर देंगे, इस पोर्ट को आइडेंटिफाई कर देंगे, यहाँ पे एक्सेस लिस्ट लगा के चेक कर लेंगे और इस वाले नेटवर्क को डिनाई कर देंगे। तो जैसे ये पैकेट इस नेटवर्क से जाएगा, यहाँ पे फिल्टर होगा और ये डिनाई करके यहाँ पे इसको यहीं पे लॉस कर दिया जाएगा पैकेट, ठीक है। जो वांटेड पैकेट है वही फिर आगे जा सकते हैं, अनवांटेड पैकेट को ये क्या कर देती है, फिल्टर कर देती है, ठीक है। ज्यादा डिटेल हम सीसीएनए में पढ़ेंगे कि फायरवॉल का क्या वर्क होता है, कितने टाइप की फायरवॉल होती है, ठीक है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कौन सी होती है, ठीक है, और पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल कौन सी होती है, हार्डवेयर फायरवॉल कौन सी होती है,
ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कौन सी होती है, होस्ट फायरवॉल कौन सी होती है। तो अलग अलग फायरवॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ MCSA। ठीक है, तो इतना ही आज के सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बोलिए। बोलिए। तो सर इसमें फायरवॉल में जैसे कि वेबसाइट है 111 डॉट, तो फायरवॉल में उसका जो पोर्ट होगा जैसे 80 है कुछ भी है, तो उसको उसमें डालेंगे कैसे, उसको डिनाई करेगा वो फायरवॉल? देखो फायरवॉल में हमें क्या करना पड़ता है, सेटिंग्स करनी पड़ती है। कुछ फायरवॉल होती है जिनमें वेब इंटरफेस के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है, और कुछ फायरवॉल जो होती हैं वो कमांड बेस पे ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है किस तरह की फायरवॉल है वो लगेगी। ठीक है ना, बराबर। इंडस्ट्री में जो चलती है वो हार्डवेयर फायरवॉल होती है। सही है, इंडस्ट्री में जो होती है हार्डवेयर फायरवॉल होती है। हम लोग तो अपने एप्लीकेशन फायरवॉल यूज करते हैं। ठीक है ना। हाँ जी योगेश जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। पूछा करो क्वेश्चन। ठीक है, Yes, हाँ बोला करो कुछ, यहाँ बोलने के लिए आए हो। ठीक है ना, yes, हाँ बोला करो, क्वेश्चन पूछा करो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लाइफ के बारे में, ठीक है, तो भी बताएंगे। कोई चीज मतलब कुछ भी पूछ सकते हो आप। ठीक है ना, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, समझ रहे हो। yes, सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ भी पूछ सकते हो। लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हो। आई हैव द सॉल्यूशन फॉर यू। ठीक है ना, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो रहा है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डिस्प्यूट हो गया है उसके रिलेटेड भी आपको एडवाइस दे देंगे। ठीक है, कुंडली देखनी है तो भी आपको बता देंगे, हाथ देखना है पामिस्ट्री तो आपको बता देंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं बताए। ठीक है ना, तो एनीथिंग एल्स लेकिन पूछा करो। ठीक है ना, सारी चीजों के आंसर है।